பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே, சோதரம் 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 சோதரோ அல்லாண்டவரே, சோதரம் 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 சோதரோ ஆராதனைக்குரியவரே, துதியிலே பிரியப்படுகிறவரே, சோதரம் அல்லேலூயா. அல்லாண்டவரே, சோதரம் 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 சோதரோ தேவாதி தேவனை துதி செய்குவோம், தினமறை திரியேக அடிபணிவோ. தேவாதி தேவனை துதி செய்குவோம், தினமறை திரியேக அடிபணிவோ. ஜீவதயா பரனை சிரமேற்கொள்வோம், ஜெயசீலரேசுவை நாம் ஏற்றி போற்றுவோம். தேவாதி தேவனை துதி செய்குவோம், தினமறை திரியேக அடிபணிவோம். தேவாதி தேவனை துதி செய்குவோம், தினமறை திரியேக அடிபணிவோம். உருவாய் மறியிடமாய் ஓனதற் போற்றிடும் உயரம்பரு. உருவாய் மறியிடமாய் ஏனிலம் இறங்கி இருளகற்றி இனிதாய் இகபர சுகம் நல்கினார். தேவாதி தேவனை துதி செய்குவோம், தினமறை திரியேக. தேவாதி தேவனை துதி செய்குவோம், தினமறை திரியேக அடிபணிவோம். பாவம் நிறைந்த நம் சாபம் தீர்க்க தேவாட்டு கட்டியாய் பாடுபட. பாவம் நிறைந்த நம் சாபம் தீர்க்க தேவாட்டு கட்டியாய் பாடுபட. ஆவலாய் நல்ல ஆயனுமாய் ஆவியானவரையே கொடுத்தவல்ல. தேவனை துதி செய்குவோம், தினமறை திரியேக. ஓம் தேவாதி தேவனை துதி செய்குவோம், தினமறை திரியேக அடிபணிவோம். ஆத்துமத்தை சுத்தம் செய்து மீட்டாரே, காத்து கொள்ள வரம் தந்தாரே. ஆத்துமத்தை சுத்தம் செய்து மீட்டாரே, காத்து கொள்ள வரம் அன்பைந்தாரே. சாத்தான் மேல் ஜெயங்கொள்ள பலன் தந்தாரே, நேர்த்தியாய் மோட்ச பங்கை நமக்கின்றாரே. தேவாதி தேவனை துதி செய்குவோம், திரியேக அடிபணிவோம். தேவாதி தேவனை துதி செய்குவோம், மறை திரியேக அடிபணிவோம். வானத்தில் இருந்தவர் மீண்டும் வருவார், ஞானமாயுலகத்தை நயம் தீர்க்கவே. வானத்தில் இருந்தவர் மீண்டும் வருவார், ஞானமாயுலகத்தை நயம் தீர்க்கவே. ஆனதலாயத்த விளைத்திருப்போம்,
ஸ்தோத்திரம் 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 பரிசுத்த பிதாவே உம்மை துதிக்கிறோம். पवित्र परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते ஆண்டவராகிய हैं. தேவன் உயிர்த்தெழுந்த பரிசுத்த நாளுக்காக நன்றியுடன் உம்மை துதிக்கிறோம். प्रभु परमेश्वर इस जी उठे हुए इस पवित्र दिन के लिए आपकी स्तुति ஆண்டவரே, करते இந்த हैं. பரிசுத்த நாளிலே हे प्रभु इस पवित्र दिन में பாதப்படியிலே கடந்து வந்து आपके चरणों में உம்மை आकर ஆராய்த்து நாமத்தை மெய்ப்படுத்தும்படியாய் आपकी आराधना और आपके नाम நீர் की महिमा பாராட்டின करने के மேலான लिए இரக்கத்துக்காக நன்றியுடன் உம்மை துதிக்கிறோம். आपने किए हुए बड़े उपकारों के लिए आपकी धन्यवाद की ஆண்டவரே, स्तुति இந்த करते हैं. ஆராதனைக்கு ஆசீர்வதிப்பீராக. हे प्रभु इस आराधना को आशीर्वाद தடைகளை कीजिए கத்த மாற்றுவீராக. और रुकावट को बदल दीजिए குடும்பமா சமதிலே கூட்டி சேர்த்து और परिवार परिवार आपके चरणों में इकट्ठा कर கர்த்தர் कर ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறேன். परमेश्वर आशीर्वाद करने के लिए आपसे विनती करते हैं. மக்களும் सारे लोग இந்த பாதத்திலே குடும்பம் குடும்பமாய் கத்து கூட்டி சேர்க்கும்படியா ஜெபிக்கிறேன். आपके चरणों में परिवार परिवार इकट्ठा करने के लिए आपसे எல்லா विनती தடைகளை करते हैं. கத்த மாற்றும். सारे रुकावट को बदल எல்லா दीजिए தடைகளை மாற்றும். सारे रुकावट को बदल दीजिए. 10வது மாதம் முதல் பரிசுத்த நாளிலே इस 10वें महीने के पहले पवित्र நீ दिनों வைத்திருக்கிற में நன்மைகளை ஆசீர்வாதங்கள் आप रखे हुए भलाई और அவர்கள் आशीर्वाद ஆராதித்து பெற்றுக்கொள்ள கத்த அனுக்கிரகம் பண்ணும். वे लोग आराधना करते हुए प्राप्त करने के लिए आप सहायता புதிய புதிய कीजिए. ஜனங்களே இந்த நாதாயன தினத்திலே கூட்டி சேர்க்கும்படியா ஜெபிக்கிறேன். नए नए लोगों को इस ऑनलाइन के द्वारा इकट्ठा कीजिए. அவர்களும் ஆசீர்வதிக்கப்பட वे लोग भी आशीर्वाद पाने के அவர்கள் लिए நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள वे लोग भी भलाई पाने के கர்த்தர் लिए அனுக்கிரகம் பண்ணுவீராக. परमेश्वर अब अनुग्रह தொடர்ந்து कीजिए. நம்முடைய கிருபைகளை மூடி மறைத்துக் கொள்ளும். लगातार आपकी कृपा में छिपा के रक्षा ஆராதனை कीजिए. பொறுப்பெடுத்து கத்த ஆசீர்வதிப்பீராக. आराधना को जिम्मा लेकर आप चलाइए. தாழ்மையாய் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. नम्रता से मांगते हैं हमारे अच्छे पिता. ஆமென் ஆமென். கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போ. हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे. சோதரம் स्तुति हो, சோதரம் स्तुति हो, स्तुति சோதரம். हो. खुशी के गीत के किताब पर गीत नंबर 138 और प्रेयर गार्डन के गीत के किताब पर गीत नंबर है 72. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर. हे मेरा मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में उसकी ही धन्य कहो. हे मेरा मन यहोवा का धन्य कहो, जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो. उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो. उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो. तेरे अधर्मों को माफ करता, रोगों को चंगा कर देता. तेरे अधर्मों को माफ करता, रोगों को चंगा करता. उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो. उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो. खड्डे से प्राण को बचाता है, दया का ताज पहनाता है. खड्डे से प्राण को बचाता है, दया का ताज पहनाता है. उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो. उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो,
कभी भी नहीं भूलो। तेरी जवानी हुक्म के समान नया बना के चलाता सदा। तेरी जवानी हुक्म के समान नया बना के चलाता सदा। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो। कभी भी नहीं भूलो। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो। कभी भी नहीं भूलो। मूसा को अपने राह बताया, आश्चर्य कर्मों को प्रकट किया। मूसा को अपने राह बताया, आश्चर्य कर्मों को प्रकट किया। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो। कभी भी नहीं भूलो। हे मेरा मन यहोवा का धन्य कहो। जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। हे मेरा मन यहोवा का धन्य कहो। जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। अगला गीत जो है खुशी के गीत के गीता पर गीत नंबर है 20वां गाना, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। अपने पंखों तले मुझको छुपा कर संभालता रहेगा। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हर रास्ता में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। हर रास्ता में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँवों में मेरे, हाथों में उठाएंगे। ना लगे पत्थर पाँवों में मेरे, हाथों में उठाएंगे। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया
शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हर रास्ता में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्ता में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँवों में मेरे, हाथों में उठाएंगे। ना लगे पत्थर पाँवों में मेरे, हाथों में उठाएंगे। हालेलुया आनंद है, 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 हालेलुया आनंद है। हालेलुया, धन्यवाद। सभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते राजा। यीशु राजा आपकी धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा। हमारे पाँव के सारे ठोकरों से बचाकर प्रभु इस 10वें महीने में अपने ले हुआ कृपा के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे अलगपने सोदरम 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 सोदरो ओम कृपा का थोदरम तगपने पैशाला दीना ना मधुरा रब शकनिखा मधुरा रबा ओम कृपा फरीद कृपा फरीद कृपा फरीद कृपा फरीद कृपा फरीदया कमल देव में मत दिगरो ऐशला ஆவியானவரே சோதரம் 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 பிரபல தெய்வமே மதுரிகிறோ பைஷாலதீனா நாமதுரா பௌரிகமா உரரப ஷகனிகமா மீனா நாமதுரா ஓம் குரு விரங்கட்டும் குரு விரங்கட்டும் குரு விரங்கட்டும் குரு விரங்கட்டையா ஓ டிப்ரெஷன் இறங்கட்டும் மேல பிரஷன் இறங்கட்டும் பிரஷன் இறங்கட்டும் பிரஷன் இறங்கட்டையா ஆவியானவரே பைஷாலதீனா நாமதுரா பௌரிகமா ஓ சோதரம் 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 சோதரா கிருபிள்ளவரே சோதரா பைஷாலா மீனா நாமதுரா பஷகனிகமா அல்லாண்டவரே சோதரா சோதரம் 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 திகப்பனே முடரை கரங்கட்டையா தாய் விரங்கட்டையா அல்லாண்டவரே சோதரம் 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 स्तुति धन्यवाद हमारे स्वर्गीय प्रभु, आपकी धन्यवाद करते राजा। इस सुंदर पवित्र दिन के धन्यवाद। पिछले 9 महीने परमेश्वर अपने आंखों के पुतले के समान हमें रक्षा किया। और प्रभु हमारे सारे पैरों को ठोकर से, हमारे सारे प्राणों को मौत से आपने बचा कर रक्षा किया हुआ। आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपके बल के लिए आपकी धन्यवाद करते राजा। इस नए महीने के, इस नए सप्ताह के शुरुआत के दिन के लिए आपकी धन्यवाद। आप आराधना के योग्य प्रभु, आपकी स्तुति, आपके नाम की महिमा, आपकी नाम की जय जयकार करने के लिए आपने हमें आपके चरणों में इकट्ठा किया हुआ। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद करते प्रभु। लगातार इस दिनों में आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई, आपके नाम की ऊंचाई करने के लिए हमें हर एक को आप कृपा दीजिए। आप हमें को हर एक को आप पवित्रता के साथ आपकी आराधना करने के लिए हमें सहायता दीजिए प्रभु। लगातार बाकी के सारे भागों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति प्रभु, आपकी राजा महिमा से हमें भरकर आप चलाइए। हर एक भागों पर आपकी विशेषता की प्रशंसा उतर कर हमें आशीर्वाद करने के लिए आप
आपसे विनती करते हैं, सारे कार्यों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्यारे पिता, आमीन आमीन। हम सब भजन संगीता के भागों को पढ़ेंगे। भजन संगीता का भाग जो है 71, सैम 81, भजन संगीता सैम 81 पढ़ेंगे। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजाने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णिमासी के हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि यह इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। उसको अपने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वो मिस्र देश से विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी, मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी डोना टूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल के गरजने के गुप्त स्थानों में से मैंने तेरी सुनी, और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल, भला है कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो, और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यहोवा के बैरियों तो उसके वश में हो जाते, और उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। हालेलुया। तो पढ़े हुए शास्त्र का वचन भजन संगीता वाला इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। तो परमेश्वर हमारा बल है। पिछले बीत गए 9 महीने तक परमेश्वर हमारे जीवन में, वो हमारे सारे कार्यों में वो हमारे लिए बल बनकर, हमारे लिए रक्षक बनकर, हमारे लिए सब कुछ के लिए सब कुछ बनकर हमें अब तक वो चलाया। प्रभु उसके हम धन्यवाद की जय जयकार करेंगे, क्योंकि दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा शरण है, वो मेरा बल है, और संकट में अधिक सहज से मिलने वाला शरण स्थान है। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। जिस प्रकार दाऊद के जीवन में उसके पास कई प्रकार के वीर और सूरवीरों होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के बल पर ही वो भरोसा रखकर उसने अपने जीवन बिताया। इसके कारण ही परमेश्वर उसके जीवन में किए हुए अद्भुत भरे काम वो अनगिनत है। तो उसी तरह परमेश्वर भी पिछले 9 महीने परमेश्वर वो हमें अपना बल देकर हमें हमारे विरोध आने वाले सारे मुसीबतों से, हमारे विरोध आए उठे सारे कार्यों से हमें बचाकर वो अपना बल देकर हमें अब तक सुरक्षित लाया। हो प्रभु उस परमेश्वर की आइए इस सुबह के समय में हम एक दृढ़ता के साथ, एक पूरे मन के साथ उसकी हम जय जयकार करेंगे। सब अपने हाथों को उठाते हुए एक पूरे एक अर्पण के साथ, एक पूरे एक बल के साथ उस महान परमेश्वर जो सिंहासन पे विराजमान प्रभु है, वो हमारे दाहिने ओर है, इसलिए अब तक हम नाश नहीं हुए, अब तक हम ना मिटे। वो परमेश्वर की अनुग्रह है, वो हमारे दाहिने ओर है, इसलिए हमारा जीवन, हमारा पैर कभी लड़खड़ाए ना होते हुए परमेश्वर ने इस 10 महीने तक हमें रक्षा करके ले आया है। आइए उस भलाई को सोचकर, उसकी करुणा को सोचकर, उसके बल को सोचकर उसकी नाम की हम बड़ाई, उसकी नाम की हम जय जयकार एक पूरे संपूर्ण के साथ, एक पूर्ण बल के साथ उसकी आराधना करेंगे, ताकि वो हमारे स्तुतियों पे निवास करने वाला प्रभु वो हमारे बीच में उतरकर हमें इस 10वें महीने में रखे हुए आशीर्वादों से, वो हमें बहुताइयों से भरने के लिए वो हमारे बीच में उतरकर हमें आशीर्वाद करने वाला महान प्रभु है। इसलिए हम सब अपने
अपने हाथों को उठाते हुए उसके नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा, यीशु राजा, धन्यवाद धन्यवाद, हमारे आदर महिमा की योग्य प्रभु, आपकी धन्यवाद करते राजा। हमारे संकट के समय में, हमारी सारी स्थितियों में आप हमारा बल बनकर, आप हमारा दृढ़ बनकर राजा अब तक चला कर आया हुआ आपकी कृपा के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु राजा आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं राजा। आप स्तुतियों के प्रिय परमेश्वर राजा, आप स्तुतियों के योग्य प्रभु हो राजा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरे तू इस जहां को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, करुणा से आपने इस नए महीने को आपने देखने के लिए सहायता किया प्रभु। आपकी धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते राजा। राजा, इस दुनिया में आए हुए सारे इस मुसीबतों से, सारे लड़खड़ाने वाले जीवन से, हमारे जीवन जब लड़खड़ा रहा था प्रभु, आपने हमें अपनी कृपा से थाम कर हमें चलाकर हमें सुरक्षित रक्षा किया प्रभु। आपकी धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते राजा। यीशु राजा, आपके नए बल के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने इस नए महीने को, नए दिन को देखने के लिए अपने सहायता किया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद राजा। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर कहता है कि मैंने उसके कंधों में से उसके सारे बोझ को उतार दिया। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो।
तो परमेश्वर इस महीने में हमारे लिए दिया हुआ जो प्रतिज्ञा है कि सारे जीवन की घबराहट, सारे जीवन में धधकने वाली, जो श्रमित करने वाले, सारे जीवन भरे हुए उस प्रकार के कार्यों से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो उसी तरह इस वचन के अनुसार, इस महीने के प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन की सारे कंधों में रहने वाले बोझ को बदलकर, उतारकर परमेश्वर इस नए 10वें महीने के इस पहले आराधना में परमेश्वर वो हमें अपनी नए कृपा से, नए बल से, नए सामर्थ से हमें वो विश्राम देने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। इसलिए उस परमेश्वर की नाम की महिमा कीजिए, ताकि वो परमेश्वर बीत गए 9 महीने में आपने कितने दुखों को, कितने प्रकार के क्लेशों को आपके कंधों में आपने उठाकर, आपके परिश्रमों को आपने उठाकर अब तक आप चले आए थे, लेकिन परमेश्वर इस 10वें महीने में आपके सारे घबराहट, आपके सारे श्रमित भरे हुए उस दिन को परमेश्वर आपको विश्राम देना चाहता है। इसलिए सुबह के समय में एक उत्साह के साथ उसकी आराधना कीजिए, क्योंकि उसकी आराधना करने वाले को कभी वो लज्जित नहीं छोड़ता है। उस समय, उस जमाने में इजराइल लोगों की जो कठिनाई भरे हुए, सारे लज्जित भरे हुए उस मिस्र देश के उस कंधे भरे हुए, उसके बोझ भरे हुए उस जीवन से परमेश्वर ने उन्हें कानान की ओर विश्राम के लिए ले गए थे। उसी तरह परमेश्वर इस दिनों में भी आपके जीवन में वो अद्भुत कामों को करने के लिए वो शामित है, शामत भरा हुआ परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर के नाम की बड़ाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करना चाहता है। हालेलुया। अब तक देखे हुए आंसू नहीं, अब तक देखे हुए श्रमित भरे जीवन नहीं, वो इस नए महीने में परमेश्वर हमें विश्राम देना चाहता है, हमारे जीवन के सारे बोझों से हमें छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद। आप महान परमेश्वर आ जहाँ, आप उन्नति भरे परमेश्वर आ जहाँ, आप ही हमारा रक्षक, आप ही हमारा छुड़ाने वाले प्रभु हो राजा। इस संसार में हमारे बोझ वो अनगिनत है राजा, वो सारे कार्यों से हमें छुड़ाकर हमें एक विश्राम भरा हुआ, हमें एक विजय भरा हुआ जीवन हमें देकर हमें उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त कीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद राजा। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नित्यों में बदल देता। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नित्यों में बदल देता। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से अब तक मरा नहीं जिंदा हूँ मैं धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 राजा तेरा धन्यवाद 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 पिता तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद 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 राजा तेरा धन्यवाद 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 पिता तेरा धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद करते प्रभु धन्यवाद करते राजा धन्यवाद करते राजा अब तक हमें चलाया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद 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 आप हमारे शरणस्थान आप हमारे बल बनकर राजा अब तक हमें सुरक्षित रक्षा किया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद 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 यीशु राजा आपके उपकारों के लिए धन्यवाद करते प्रभु धन्यवाद 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 करते राजा स्तुति हो प्रभु धन्यवाद 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 हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो अब तक प्रभु परमेश्वर इस आराधना के हर एक भागों को आशीर्वाद कर कर हमें चलाया हुआ उस कृपा अनुग्रह के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो आगे के सारे भागों को परमेश्वर जिम्मा लेने के लिए स्तुति करेंगे स्तुति हो परमेश्वर के सुंदर वचनों को इस दिनों में हमारे बीच में भेजकर हमारी आवश्यकताओं की वचनों को देकर हमारे प्राण शरीर आत्मा बल पाने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே प्रभु परमेश्वर ही இந்த ஆஸ்வதிக்கப்பட்ட அந்த மகிமையான நாளிலே इस आशीर्वाद पाए हुए इस महिमा भरे கர்த்தர் दिनों உங்களை में ஆசீர்வதிப்பாராக परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करेगा நன்மையினாலும் கிருபையினாலும் கர்த்தர் முடிசூட்டுவாராக भलाई और करुणा से आपको मुकुट पहनाएगा ஆண்டவர் தமது முகத்தை உங்கள் மேலே பிரசன்னமாக்கி பிரகாசிக்க பண்ணி परमेश्वर अपने चेहरे को आपके चेहरे पे प्रकाशित कर कर அவர் நன்மையினாலும் கிருபையினாலும் முடிசூட்டுவாராக वो अनुग्रह और कृपा से आपको मुकुट पहनाएगा சமாதானத்தின் தேவன் தாமே शांति का प्रभु ही எல்லா தீமைக்கு தீங்குகளுக்கு பாதுகாப்பாராக सारे बुराई और हानि से आपको बचाकर आपको रक्षा करेगा ஹல்லேலூயா हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே प्रभु परमेश्वर ही இந்த காணொளி மூலமாக इस ऑनलाइन के द्वारा சோத்திரம் கர்த்தரை துதிக்க ஆராதிக்க परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के தேவன் लिए பாராட்டின கிருபைக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் परमेश्वर ने किए हुए उपकारों के लिए परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं தொடர்ந்து இந்த காணொளி நடக்கிற ஆராதனையில் நீங்கள் பங்கு பெற்று கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் लगातार इस ऑनलाइन के द्वारा होने वाले हर एक आराधना में भाग लेकर आप आशीर्वाद पाइए உங்களுக்கு அறிந்த தெரிந்த நண்பர்களை இதில் இணைத்துக் கொள்ளுங்கள் आपके जाने अनजाने सभी लोगों को इसमें जोड़ लीजिए சோத்திரம் ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக इस ऑनलाइन के द्वारा கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை கொண்டு கர்த்தர் அநேகருக்கு ஆசீர்வதித்து வருகிறார் परमेश्वर के वचन के द्वारा कई लोगों के जीवन को परमेश्वर आशीर्वाद करते आ रहा है ஜனங்கள் சோத்திர நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் और कई लोग भलाइयों को प्राप्त कर रहे हैं அநேக ஜனங்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறார்கள் और कई लोग झिलाए जा रहे हैं அநேக ஜனங்கள் விடுதலையாக்கப்படுகிறார்கள் और कई लोग छुटकारा भी पाए जा रहे हैं இந்த நாளிலும் கர்த்தர் உங்களை விதமாய் ஆசீர்வதிப்பாராக इस दिनों में उस प्रकार परमेश्वर आप लोगों को भी आशीर्वाद करेगा ஆமோஸின் புஸ்தகம் आमोस की किताब ஆமோஸின் புஸ்தகம் आमोस की किताब 8ஆம் அதிகாரம் उसका 8वां अध्याय சோத்திரம் 13வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் उसका 13वां वचन पढ़ते हैं ஆமோஸின் புஸ்தகம் आमोस की किताब 8ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிப்போமானால் 8वें अध्याय में हम पढ़ते समय 8ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்திலே 8वें अध्याय के 13वां वचन हम पढ़ते समय சோத்திரம் அந்நாளிலே उस समय में சௌந்தரியமுள்ள கன்னிகளும் सुंदर कुमारियां வாலிபரும் और जवान
தாகத்தினால் சொந்து போவார்கள். वो प्यासे के साथ मुरझा जाएंगे। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அந்நாளிலே என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு கடைசி காலங்கள். उस दिन कहेंगे तो वो अंतिम समय का एक समय है। தேசத்தில் ஒரு கொடிய பஞ்சம் வரப்போகிறது. और देश में एक कठोर अकाल आने वाला है। அந்த பஞ்சத்திலே उस अकाल में சோத்திரம் வருகிற ஆகாரம், आने वाली जो भोजन, ஆகாரத்தினால் வருகிற பஞ்சம் அல்ல. भोजन के द्वारा आने वाले अकाल नहीं है। சோத்திரம் அது தண்ணீரினால் வருகிற பஞ்சம் அல்ல. और वो पानी के द्वारा आने वाले जो अकाल नहीं है। இதோ நான் தேசத்தின் மேல் பஞ்சத்தை அனுப்பும் நாட்கள் வரும். देखिए मैं देश के ऊपर जो अकाल देने वाला दिन आएगा। ஆகார குறைவினால் உண்டாக பஞ்சம் அல்ல. वो भोजन के अनाज के वस्तु के द्वारा आने वाली, ஜல குறைவினால் உண்டாக பஞ்சமும் அல்ல, தாகமும் அல்ல. और जल के द्वारा प्यास होने वाली जो கர்த்தருடைய अकाल नहीं, வசனம் கேட்க கிடையாத और यहोवा के वचनों को ना सुनने होने वाली, பஞ்சத்தை அனுப்புவேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். उस प्रकार के अकाल को, भूख को, प्यास को भेजूंगा कहकर அப்பொழுது परमेश्वर कहते हैं। அவர்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தை தேட तब परमेश्वर यहोवा के वचन को खोज ஒரு में சமுத்திரம் தொடங்கி एक समुद्र से மறு சமுத்திரம் வரைக்கும் மறு சமுத்திர திசை மட்டும் திசை தொடங்கி கீழ் திசை மட்டும் அலைந்து திரிந்தும் அதை கண்டடையாமல் போவார்கள். और दूसरे समुद्र तक और उसके पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे परंतु उसको ना पाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப அந்நாளிலே சௌந்தரியம் உள்ளவர்கள், तो उस समय में सुंदर कुमारियां சௌந்தரியமுள்ள கன்னிகைகள், और सुंदर कुमारियां வாலிபர்கள் और जवान लोग தாகத்தினாலே சொந்து போவார்கள். और उस प्रकार प्यास के द्वारा मुरझा जाएंगे। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा இப்போ हो। கடைசி நாட்களிலே சம்பவிக்க போகிற சம்பவங்களை குறித்து ஆமோஸ் தீர்க்கன் மூலமாக கர்த்தர் வெளிப்படுத்துகிறார். तो अंतिम दिनों में होने वाली जो संभव के बारे में इस आमोस भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने यहाँ पर ஒரு लिखा गया। பஞ்சம் வரப்போகிறது. तो एक अकाल आने वाला है। ஆகார பஞ்சம் அல்ல, वो अनाज का अकाल नहीं है, அது தண்ணீருடைய பஞ்சம் அல்ல, वो पानी के द्वारा होने वाले अकाल नहीं है। கர்த்தருடைய வசனம் கேட்க கூடாத ஒரு பஞ்சம். परमेश्वर की वचन ना सुनने वाली एक अकाल, கர்த்தருடைய வசனங்கள் கிடைக்காத ஒரு பஞ்சங்கள் வர போகுது. परमेश्वर की वचन ना मिलने वाला एक अकाल आने அப்ப वाला அந்த है। அந்த கர்த்தருடைய வார்த்தைக்காக तो परमेश्वर के वचन के लिए தேசமெல்லாம் தேடுவார்களாம். देश पूरा वो ढूंढते रहेंगे। ஒரு சமுத்திரம் தொடங்கி एक समुद्र से लेकर மறு சமுத்திரம் வரைக்கும் ஓடுவார்கள். उस समुद्र के चौर तक वो दौड़ेंगे। எங்கேயாவது வசனம் கிடைக்குமா? कहीं तो वचन मिलेगा क्या? எங்கேயாவது வசனம் கிடைக்குமா? कहीं तो एक वचन मिलेगा क्या? எங்கேயாவது பிரசங்கம் பண்ணுவாங்களா? कहीं तो क्या प्रचार करेंगे क्या? இப்படி அலைவார்கள். ऐसा भटकते रहेंगे। அந்த மணவாளன் வருகிற போது जब दूल्हा आते समय தன்னிடத்தில் எண்ணெய் குறைந்து போச்சு. अपने पास की तेल कमी पड़ गई। மணவாட்டிகள் எண்ணெய் குறைந்து போன போது जो दुल्हन के पास तेल कम पड़ते அவர்கள் हैं, எண்ணெய் வாங்க கடைக்கு புறப்பட்டு போனார். वो तेल लेने के दुकान पर निकल पड़े थे। வேற ஒண்ணும் கிடைக்கல பாரு. उस समय में कुछ नहीं मिला। देखो ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மணவாளன் வந்தாரு, दूल्हा आया யசோதா ஆயத்த முதல்ல அழைச்சிட்டு போயிட்டாரு. और जो तैयार था उसे लेकर चले அது गए। போல उसी तरह ही வாழ்க்கையில பணம் எல்லாம் இருக்கும், जीवन में पैसा सब होगा சொத்து எல்லாம் இருக்கும், और धन सब होगा, ஆனா வசனம் கிடைக்காது பாரு. लेकिन वचन नहीं मिलेगा। எங்க ஓடுவா, कहाँ का दौड़ेंगे, எங்க அலைவா. कहाँ का भागेंगे। இப்ப ஆன்லைன்ல அப்படியே வசனம் மோதிக்கிட்டு வருது. अभी तो ऑनलाइन में वैसे ही वचन फेर रहा है, எல்லாம் கண்ட கழுதெல்லாம் பேசிட்டே வருது பாரு. और जो चाहिए वो सब प्रचार कर रहे हैं। சின்ன குழந்தை பிரசங்கம் பண்ணுது, तो छोटे बच्चे प्रचार कर रहे हैं, சின்ன பிள்ளைகள் பிரசங்கம் பண்ணுகிறார்கள், छोटे बच्चे प्रचार कर रहे சின்ன हैं, பிள்ளைகள் வர்ஷிப் பண்ணுகிறார்கள், और छोटे बच्चे वर्शिप कर रहे हैं, சின்ன பிள்ளை எல்லாம் ஊழியம் செய்கிறார்கள். और छोटे बच्चे सब सेवकाई कर रहे எல்லாம் हैं। நடந்துட்டே வருது பாரு. सब कुछ हो रहा है देखो। ஆனா கடைசி காலத்துல लेकिन अंतिम दिनों में ஒண்ணுமே கிடைக்காதான். कुछ भी नहीं मिलेगा। பிரியாணி கிடைக்கும், बिरयानी मिलेगा, மட்டன் கிடைக்கும், मटन मिलेगा, எல்லாம் கிடைக்கும் सब பாரு. कुछ मिलेगा, ஆனா கர்த்தருடைய வசனம் மட்டும் கிடைக்காது. लेकिन परमेश्वर का वचन केवल नहीं मिलेगा। அதுக்காக ஜனங்கள் அலைவார்களாம். उसके लिए लोग यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे, அதுக்காக ஜனங்க சுத்திக்கிட்டே இருப்பா. उसके लिए यहाँ वहाँ घूमते फिरेंगे, தேடி 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 वो ढूंढ ढूंढ कर சோர்ந்து போவா. वो निराश हो जाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा அப்ப हो। இந்த நாளிலே तो इस दिनों में சோறுகள் உண்டாக்குற காலங்கள் வருகிறது. जो निराश ले आने वाले दिन आने वाला है, சோறுகள் உண்டாக்குற நாட்கள் வருகிறது. जो निराश ले आने वाले दिन आने वाला है, ஆகையினால் நீ சோர்ந்து போக கூடாது. इसलिए आप निराश नहीं होना है। அப்ப இந்த 10வது மாதத்தின் முதல் பரிசுத்த நாளிலே तो इस 10वें महीने के
पहले पवित्र आराधना के दिनों நீ में சோர்ந்து போகாத. आप निराश मत होइए। கடந்த 9 மாதங்களாக बीत गए 9 महीने உன் तक ஆசீர்வாதத்தை தேடி, आशीर्वाद को உன் ढूंढकर, நன்மைகளை தேடி, भलाइयों को உன் ढूंढकर, தேவைகளை தேடி, आपके जरूरतों को உன் ढूंढकर, சகல காரியங்களை தேடி, आप कई प्रकार के कार्य को தேடி ढूंढकर, தேடி தேடி ஒருவர் சோர்ந்து போயிருக்கலாம். आप ढूंढ ढूंढ कर एक प्रकार के निराश में होंगे। நன்மைகளை எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து சோர்ந்து போயிருக்கலாம். भलाई को देख देख कर आप निराश होंगे। கர்த்தர் ஜெய்வார் ஜெய்வார் என்று நீ சோர்ந்து போயிருக்கலாம். परमेश्वर पूरा करेंगे करेंगे कहकर निराश हो ஆனால் जाएंगे। ஆண்டவராகிய தேவன் சொல்லுகிறார், लेकिन प्रभु परमेश्वर कहते हैं நீ சோர்ந்து போகாத. आप निराश मत होइए। நான் எபிரேயர் புஸ்தகத்துல, वही எபிரோனிய की किताब पर, எபிரேயர் புஸ்தகம் எபிரோனிய की किताब 13ஆம் அதிகாரத்துல 12ஆம் அதிகாரத்துல उसके 12वां अध्याय पर 3 முதல் வாசிப்போமானா, उसका 3 से लेके पढ़ेंगे। ஆகையால் நீங்கள் இளைப்புள்ளவர்களாய் உங்கள் ஆத்துமாக்களை சோர்ந்து போகாதபடிக்கு, इसलिए आप निराश ना होते, आपके प्राण में विश्राम ना होते हुए தமக்கு விரோதமாய் பாவிகளால் செய்யப்பட்ட இவ்விதமான விவரதங்களை சகித்து அவரையே நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். और अपने विरोध जो किए हुए सभी प्रकार के कार्य को याद कीजिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। ஆண்டவராக தேவன் तो प्रभु परमेश्वर எபிரேய சபைக்கு பரிசுத்த பவுலமெல்லாம் எழுதுகிறார். हिब्रियों कलीसिया को पवित्र पौलुस के द्वारा लिखते हैं, நீங்கள் பலவிதமான காரியத்தில் அகப்பட்டு நீங்க சோர்ந்து போக வேண்டாம். आप कई प्रकार के कार्यों में जकड़ कर आप निराश मत होइए। ஆகையினாலே நீங்கள் சோர்ந்து போகாம इसलिए आप निराश ना होते हुए பாவிகளால் செய்யப்பட்ட पापी के द्वारा किए गए ஸ்தோத்திரம் இயேசுவுக்கு பாவிகளால் செய்யப்பட்ட காரியத்தையே நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள். और पापी लोग यीशु के बारे में किए हुए कार्य को ही सोच कर देखिए, ஸ்தோத்திரம். ஆத்துமாக்கள் சோர்ந்து போகாதபடிக்கு, जो प्राण निराश ना होते हुए தமக்கு விரோதமாய் பாவிகள் செய்யப்பட்ட अपने विरोध जो पाप किए गए, இவ்விதமான விவரங்களை சகித்து அவரையே நினைத்துக்கொள். इस प्रकार के कार्य को सहन किया, उनको याद कर அப்ப लीजिए। இயேசு எவ்வளவு காரியத்தை சகித்திருக்கிறார். तो यीशु मसीह कितने प्रकार के कार्य को सहन किया, நமக்காக वो हमारे लिए அவர் தம்மையே ஒப்பு கொடுத்தாராம். वो अपने आप को ही अर्पण किए हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। சகோதரம் ஆகினால इसलिए இந்த நாட்களிலே इस दिनों में நம்முடைய வாழ்க்கையை हमारे जीवन को சற்று யோசித்து பார்த்து, जरा सोच कर நாம் देखकर, சிந்தித்து பார்த்து, हम विचार कर कर நான் வாழ்க்கையில இயேசுவை தான் பார்க்கணும். हम जीवन में केवल यीशु को ही देखना है। வாழ்க்கையில சோறு வருகிற போதெல்லாம் जीवन में जब निराश आते समय நமக்காக சகித்த இயேசுவை தான் பார்க்க வேண்டும். हमारे लिए सहन किया वो उस यीशु मसीह को ही देखना है। நம்ம சோர்வு हमारा जो निराश மனுஷ வாழ்க்கையில எப்படி வரும் பாருங்க. मनुष्य के जीवन में कैसा भी आता யோனா है। வாழ்க்கையில சோர்வு வந்தது. योना के जीवन में निराश आया, எலியா வாழ்க்கையில சோர்வு வந்தது. एलिया के जीवन में निराश आया। இப்ப அநேக மக்கள் வந்தார்கள். ऐसा कई लोग आए। எலியா சொல்லுகிறான், एलिया कहता है போதும் ஆண்டவரே, बस हो गया प्रभु, என்னை எடுத்துக்கொள்ளும். मुझे उठा लीजिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம். சோர்ந்து போயிட்டான். वो निराश हो गया। ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर தட்டி எழுப்பி उसे उठाकर கர்த்தர் வார்த்தைகளை கொடுத்து परमेश्वर के शब्दों को भेजकर ஒரு ஆகாரத்தை புசித்து उसके आहार को देकर 40 நாள் புறப்பட்டு போனான் பாருங்க. वो 40 दिन निकल कर चला। ஒரு இரவு பகல் 40 நாள் 40 वो दिन रात 40 दिन वो चला। 40 நாள் போய் 40 दिन चलकर ஸ்தானத்துல ஒரு மனுஷன் ஆசீர்வதித்தார் பாருங்க. वो एक स्थान पर जाकर उस मनुष्य को आशीर्वाद किया। வார்த்தை கிடைத்தா तो परमेश्वर के वचन मिलेंगे எல்லா तो சோறு மாறும் பாரு. सभी निराशपन बदल जाएगा। ஆமோஸ் தீர்க்கன் சொல்லுகிறாரு, वही आमोस भविष्य तक சோர்வை कहता है, மாற்றக்கூடிய வார்த்தைகளுக்காக जो निराशपन को बदलने वाले शब्दों के लिए எங்கெங்கேயோ மக்கள் போகுது. कहां-कहां लोग जाते हैं, சோறு மாறல, निराश नहीं बदला, சோர்ந்து போறா. निराश हो जा रहे। அதனால इसलिए ஆத்துமாக்களிலே प्राणों में இளைப்புள்ளவளாய் காணப்பட்டு जो विश्राम पाए हुए दिखाई, சோர்ந்து போகாம இருங்க. आप निराश मत होइए, ஏனென்றால் பாவிகளாலே செய்யப்பட்ட क्योंकि पापी लोगों के द्वारा விவரங்களை நினைத்து उसकी सारे कार्य को सोचकर, இயேசுக்கு என்னென்ன காரியம் செஞ்சா பாருங்க, यीशु को क्या-क्या कार्य किया सोच के देखिए, நினைத்து वो सारी चीजों को सोचकर நினைத்துக்கொள். उनको याद स्मरण कीजिए। இயேசு எவ்வளவு சோதனை பண்ணா, तो यीशु को कितना परेशानी की, சோர்ந்து போகலையே, वो निराश नहीं हुए, சோர்ந்து போகலையே, वो निराश नहीं हुए, சோர்ந்து போகாம वो निराश ना होते हुए பாடெல்லாம் சகித்தாரே, वो सारे परिश्रम को सहन किया, பாடெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டாரே. वो सारे परिश्रम को स्वीकार அதே किए। போலதான் उसी तरह ही 10வது மாதத்துல इस 10वें महीने में நீங்க சோர்ந்து போகாதே. आप निराश मत होइए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा இப்போ हो। நம்முடைய வாழ்க்கையில तो हमारे जीवन में நாம் எப்படிப்பட்ட காத்து சோர்ந்து போகாம இருக்கணும். हम किस प्रकार के कार्य में निराश नहीं होना है। சோறு வரும், निराश आएगा, நான் பரிசுத்த ஆண்டவர் சொன்னார், वही पवित्र परमेश्वर ने कहा, உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரம்
இருக்கிறது. इस संसार में आपके लिए उपद्रव है, அதனால சோர்வு இருக்கும், इसलिए निराश होगा, எல்லாம் வரும், सब कुछ ஆனா आएगा, சோர்ந்து போக கூடாது. लेकिन निराश मत होइए। அதான் ஏசாயா பக்தன் சொன்னா, येसाया भक्त ने कहा கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ परमेश्वर की जो पाठ जो होते हैं புது பலன் அடைவார்கள். वो नए बल पाते அந்த हैं, பலனை பெற்ற பின்பு वो बल को पाने के बाद அவர் நடந்து போனாலும் वे चलेंगे तो भी, அவர் ஓடினாலும் वो दौड़ेंगे तो भी சோர்ந்து போக மாட்டார்கள். वो निराश नहीं होंगे, வாலிபர்கள் சோர்வார்கள், वो जवान लोग श्रमित होंगे இளைஞர்கள் சோர்ந்து போவார்கள், और पुरुष श्रमित होंगे எல்லா இளைஞர்கள் சோர்ந்து போவார்கள், और जवान लोग विश्राम வாலிபர்கள் சோர்ந்து போவார்கள், और जवान लोग எல்லாம் जो இடறி निराश होंगे, போவார்கள். सब लोग लड़खड़ा ஆனா जाएंगे। கர்த்தர் காத்திருந்து लेकिन परमेश्वर की पाठ जो कर பலனை பெற்றவர்களோ वो बल को पाने वाले ஒரு நாளும் சோர்ந்து போக மாட்டார்கள். वो कभी निराश नहीं होते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஆகினால इसलिए நம்முடைய வாழ்க்கையில हमारे जीवन में சோத்திரம் நாம் எப்படிப்பட்ட காரியத்தில் சோர்ந்து போக கூடாது. हम किस प्रकार के कार्यों में निराश नहीं சில होना பேர் है। வாழ்க்கையில பார்க்கலாம், कई लोग जीवन देख सकते हैं, வியாதியை பார்த்து சோர்ந்து போகிறார்கள், बीमार को देखकर निराश हो जाते हैं, சில மரணத்தை பார்த்து சோர்ந்து कई போகிறார்கள், लोग मौत को देखकर निराश हो जाते हैं, சில இழப்பை பார்த்து சோர்ந்து போகிறார்கள். कई खोएपन को देखकर निराश हो जाते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, தாவீது தன் வாழ்க்கையில வந்த ஒரு இழப்பை பார்த்து சோர்ந்து போனான். दाऊद ने अपने जीवन में एक आए हुए खोएपन को देखकर वो निराश हो गया। கர்த்தருடைய வார்த்தை தேற்றி वो परमेश्वर के वचन उसे तसल्ली தன்னை देकर திடப்படுத்திக் கொண்டான். वो अपने आप को दृढ़ता कर लिया। ஒரு மரணம் வந்து சோர்வு உண்டாக்கினது, एक मौत आकर उसको निराशपन कर दिया, தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டான். उसने अपने आप को दृढ़ता कर இப்படி लिया। अनेक காரியம் வருகிறது பார். तो इस प्रकार कई प्रकार के कार्य आता है। எசேக்கியேலுக்கு ऐसे के राजा को அவன் நம்பியே பார்க்கல, वो सोच के भी இப்படி नहीं देखा। ஆண்டவர் சொல்வார் நீ அவனை யோசித்து பார்க்கல பார். ऐसा परमेश्वर ने कहा कहेंगे करके सोच के भी नहीं देखा। செத்து போவ, तू जल्दी मर जाएगा। வார்த்தையை எதிர்பார்க்கல. उस शब्दों को उसने எதிர்பார்த்த இந்த வார்த்தை எதிர்பார்க்காத காரியம் இருந்தபடினால उस शब्दों को उसने देखा नहीं, उस प्रकार कार्य को வார்த்தை கேட்ட உடனே उस शब्दों को सुनते ही அவன் அப்படியே சோர்ந்து போயிட்டான். वो वैसे ही निराश हो गया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, எலும்பு கூட மனசு இல்ல, उसे उठने भी उसका मन नहीं था, எலும்பு உட்கார கூட மனசு இல்ல, उसको उठकर बैठने का भी मन नहीं அப்படியே था। படுத்துக்கிட்டு திரும்பி ஜெபம் பண்ணான். वो वैसे ही लेटकर फिर कर प्रार्थना किया। சித்தமானா यदि आपकी इच्छा உன் हो முன்பாக तो நான் எப்படி வாழ்ந்து வந்தேன் आपके सामने में कैसा அதை जीवन நினைத்தருளும் என்று जिया, उससे சொன்னான். स्मरण कीजिए करके कहा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப இந்த நாட்களில तो इस दिनों में இந்த 9 மாதங்களா बीत गए 9 महीने நீங்க சோர்வின் பாதையில கடந்து வந்திருக்கலாம், आप निराशपन के जीवन में आए होंगे। வியாதி சோர்வு கொண்டு வந்திருக்கலாம், वो बीमारी निराश को ले आया होगा, பிரச்சனை சோர்வு கொண்டு வந்திருக்கலாம், परेशानी निराश को ले आया होगा, போராட்டம் சோர்வு கொண்டு और வந்திருக்கலாம், लड़ाई पर निराशपन को ले आया होगा, பலவிதமான காரியங்கள் சோர்வை கொண்டு और வந்திருக்கலாம், कई प्रकार के कार्य निराशपन को लाया होगा। நினைத்த காரியம் நடக்கவில்லை சோர்வு கொண்டு வந்திருக்கலாம். जो सोचा हुआ कार्य नहीं हुआ करके उसके ऊपर निराशपन எப்படிப்பட்ட आएगा। பாதையிலே சோர்வு வந்திருந்தாலும் यदि किस प्रकार के मार्ग में भी आपकी निराशा आए तो ஆண்டவராகிய भी, தேவன் लेकिन प्रभु நீ परमेश्वर சோர்ந்து போகாதே என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். आप निराश मत होइए कर परमेश्वर நீ कहते हैं। சோர்ந்து போகாதே, आप निराश मत होइए, நீ சோர்ந்து போய் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்காதே. आप निराश होकर जीवन मत बिताइए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அநேக மக்களை பார்த்து कई लोगों को देखकर ஆண்டவராகிய தேவன் நீ சோர்ந்து போகாதே என்று சொன்னார். प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि आप निराश मत होइए। அப்ப இந்த நாட்களிலே तो इस दिनों में நாம் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையில் சோர்ந்து போகாமல் இருக்க हम வேண்டும் किस प्रकार के जीवन में निराश नहीं होना है, என்பதை குறித்து ஓரிரு காரியங்களை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன். ऐसा एक दो कार्य के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீதிமொழியின் புஸ்தகத்திலே नीति वचन के किताब 24ஆம் அதிகாரம் 24वां अध्याय 10வது வசனத்தை வாசிப்பாயானால், उसका 10वां वचन हम पढ़ते समय, ஆபத்து காலத்தில் நீ சோர்ந்து போவாயானால் यदि संकट के समय में आप निराश होंगे உன் तो பலன் குறுகினது. आपका ஆபத்து காலத்திலே நீ சோர்ந்து போவாயானால், यदि संकट के समय में आप निराश होंगे तो, ஆபத்து காலத்திலே நீ சோர்ந்து போவாயானால் यदि संकट के समय में आप निराश होंगे तो உன் பலன் குறுகினது. आपका बल कमजोर हो जाएगा। அப்போ நாம் எதிலே சோர்ந்து போக கூடாது, तो हम किस में निराश नहीं होना நீ है, சோர்ந்து போகாதே. आप निराश मत होइए। அப்போ எதிலே சோர்ந்து போக கூடாது, तो हम किस में निराश नहीं எப்போ होना है, சோர்ந்து போக கூடாது, कभी எப்போ சோர்ந்து போக கூடாது, कभी निराश नहीं होना है। அது ஆபத்து காலத்திலே, संकट के समय में, ஆபத்து காலங்கள். संकट के समय அப்போ எல்லா மனுஷனுக்கும் तो सभी मनुष्य को நல்ல காலம் இருக்கிறது, अच्छा काल है சோதனை காலங்கள் இருக்கிறது, और परेशानी भरे हुए काल है இந்த காலங்கள் और இருக்கிறது, संकट भरे हुए काल है। எல்லா காலங்கள் வரும். सभी प्रकार के काल आएगा। உலகத்திலே மனுஷனுக்கு வாழ்வதற்கு इस संसार में मनुष्य को जीने के लिए முன்மாரி காலம் வருகிறது, वो आप बीते हुए जीवन आता பின்மாரி है, காலம் வருகிறது, और जो बीत गए जीवन भी आता வசந்த है, காலம் வருகிறது, और जो वर्षा की जीवन भी மழை आती है, காலம் வருகிறது, वर्षा की जीवन भी आती है, மழை காலங்கள் வருகிறது, वर्षा की जीवन भी आती है, குளிர் காலங்கள் வருகிறது, और ठंडी भरे हुए जीवन भी आते हैं, வெயில் காலங்கள் வருகிறது, और धूप भरे जीवन भी आते हैं। இப்படி காலங்கள் வருகிறது.
इस प्रकार की काल அப்ப आता है, இதெல்லாம் மனுஷன் இப்படிப்பட்ட காலம் தான் வாழ முடியும். तो इस प्रकार की काल में मनुष्य जीता है. ஒரே குளிரா இருந்தாலும் வாழ முடியாது. हमेशा ठंडी रहेगा तो जी नहीं ஒரே पाएगा, வெயிலா இருந்தாலும் வாழ முடியாது. हमेशा धूप रहेगा तो जी नहीं ஒரே पाएगा, பனியா இருந்தாலும் வாழ முடியாது. हमेशा सर्दी रहेगा तो जी नहीं ஆனா पाएगा. இந்த மூன்று காலங்கள் வந்துட்டே இருக்கு பாரு. लेकिन ये 3 प्रकार का काल आता है. देखो, ஹalleluya ஹalleluya கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. அதே போலதான் उसी तरह ही ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर நம்ம வாழ்க்கை நல்ல காலங்கள் இருக்கும், हमारे जीवन में अच्छे काल होंगे, மகிழ்ச்சியான காலங்கள் இருக்கும், आनंद भरे हुए काल होंगे, ஒரு சமாதானத்தின் காலங்கள் இருக்கும். शांति भरे हुए काल होंगे. அதே போல துக்கமும் ஆபத்துகள் வரும். उसी तरह दुख और संकट के काल भी होगा. ஆபத்துகள் வரும், वो संकट भी आएंगे, ஆபத்து வரும். वो संकट आएंगे, அந்த ஆபத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு வராது. वो संकट कभी कह कर नहीं आएगा. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया. சில ஆபத்தெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டே வராது. कई संकट जो है आपको कह कर नहीं आएगा. வெயிட் பண்ணு நான் வரேன்னு வெயிட் பண்ண வைக்காது. आप रुकिए मैं आऊंगा करके कह कर नहीं आता. எதிர்பாராத நேரத்தில் நடக்க ஆபத்து. वो हमारे अनजाने समय पर वो हमारे संकट आती है. நல்லா தான் ஜெபம் பண்ணிட்டு போவே, आप अच्छा ही प्रार्थना करके जाओगे, ஒரு பைக்கர் வந்து மேல வந்து விழுந்திருப்பான். जाते हुए मार्ग में बाइक वाला आकर आपको ठोक देगा. பைக்கர் மேல வந்து விழுந்து बाइक हमारे ऊपर गिरकर கை உடைஞ்சிரும், கால் உடைஞ்சிருக்கும். हाथ या पैर उसपे के द्वारा टूट जाता है. ஆபத்து நாளும் वही संकट का काल, ஆபத்து காலங்கள், वही संकट का काल है. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया. இதுல சோர்ந்து போக கூடாது. इसमें हम निराश नहीं होना है. யோபு பார்க்கலாம். अय्यूब को हम देखेंगे. யோபு என்ன செய்தாரு? अय्यूब ने क्या किया? பசங்க எல்லாம் விருந்து கொண்டாட்டு வந்தா, वो अच्छा दावत कर कर आया பிள்ளைகள் எல்லாம் விருந்து கொண்டாட்டு और வந்தா. बच्चे सभी दावत कर रहे थे. அப்போ யோபு என்ன செஞ்சாரு? तब अय्यूब ने क्या அந்த किया? பிள்ளைகள் ஆயிரம் இருதயத்தின் நினைவினால பாவம் செஞ்சிருக்குமா? यदि मेरे बच्चे के अपने सोच में पाप किए होंगे क्या? அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் பலி செலுத்தினார். वो सारे बच्चों के पाप के लिए उसने बलि பலி चढ़ाया செலுத்தி பரிசுத்தமாக்கினார். और बलि चढ़ा के उनको पवित्रता किया. நல்லா தான் வாழ்க்கை போச்சு. वो अच्छा ही जीवन बीत रहा था. ஆனால் இப்படி திடீர்னு என்ன செஞ்சது? लेकिन अचानक क्या हो ஒரு गया? வேலைக்காரர் வரான், उसका नौकर आया, ஆடு மாடெல்லாம் கொண்டு போயிட்டான். उसके भेड़ बकरी सब चले गए. திடீர்னு வேலைக்காரர் वो வரான், अचानक नौकर आ रहा है, பிள்ளைகள் எல்லாம் போயிட்டு, सारे बच्चे मर गए. திடீர்னு வேலைக்காரர் வரான், अचानक नौकर आ रहा है, சொத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு, तेरे सारे संपत्ति डूब गए. இதெல்லாம் வந்து சொல்ல சொல்ல ये सब आकर कहते कहते வாழ்க்கையில जीवन में ஒண்ணுமே செய்ய முடியல. कुछ भी वो कर नहीं पाया. திடீர் நடக்குது. वो सब अचानक हो रहा है. ஹalleluya. हालेलुया. அவ என்ன செய்யல? वो क्या नहीं किया? சோர்ந்து போகல. वो निराश नहीं हुआ. கர்த்தர் கொடுத்தா, परमेश्वर ने दिया, கர்த்தர் எடுத்துக்கொண்டா, परमेश्वर ने उठा लिया. கர்த்தருக்கு தோத்திரம். परमेश्वर की स्तुति हो. ஆபத்து வரும், वो संकट आएगा. சோதரம். உண்மையா ஜீவிக்கிறபடி ஆபத்துகள் வரும். सच्चाई से जीने वाले लोगों के जीवन में संकट आएगा. உண்மையா இயேசு பின்பு ஆபத்துகள் வரும். वो संकट में सच्चाई से ஏன்னா जीने वाले, சத்துரு அப்பதான் போராடிட்டு இருப்பான் பாரு. क्योंकि शत्रु तभी ही लड़ते रहेगा. சோதரம் உண்மையா ஜீவிக்கலாம், அவனுக்கு ஆபத்தே வராது. जो सच्चाई से नहीं जिएगा उसको कभी ஏன்னா संकट அவன் नहीं, அவன் ரூட்ல போயிட்டு இருக்கான். क्योंकि वो अपने मार्ग में चल रहा है. ஹalleluya. ஆனா சத்துரு அவன் தொட மாட்டான் பாரு. इसीलिए शत्रु उसे छूता नहीं है. ஆபத்து வரும். ஆபத்து நாட்களில संकट के दिनों में சோர்ந்து போக கூடாது. हम கभी निराश नहीं होना है. யோபு நினைக்கணும், तो अय्यूब को हम स्मरण करना யோபு है. வாழ்க்கையில வந்து அத்தனை ஆபத்துகளும் अय्यूब के जीवन में आए सारी विपत्तियां சொல்லிட்டு வரல. वो कभी कह कर नहीं आया. சோதரம் சொல்லாம தான் வந்தது. वो बिना कह कर ही आया. இப்ப எல்லாம் சொல்றாங்க, अभी सब कहते हैं இன்னைக்கு சுனாமி வரும், आज सुनामी आएगा, இன்னைக்கு மழை வரும், आज बारिश आएगा. தமிழ்நாட்டுல तमिलनाडु भाग में பலத்த மழை வரப்போகுது என்று वो बड़ा गरज वाले बारिश होने लगा. முன்னதாகவே पहले ही முன்னெச்சரிக்கையாக எல்லாத்தையும் சேஃப்டி பண்ணி வச்சுட்டாங்களாம். पहले चेतावनी के अनुसार उसे सब कुछ सेव करके रख दिया. மணல் மூட்டைகள், जो मिट्टी की जो கயிறு, वो रस्सियां, जो கத்தி, जो फावड़ा, हथियार, எல்லாம் வாங்கி வச்சிட்டாலாம். सब कुछ लेके रख दिए. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया. அது போல उसी तरह மழை வருது சொல்லிட்டு வருமா, जो बारिश का कह कर आएगा क्या, இவங்க நினைக்கிற இடம் ஒண்ணு, ये सोचने वाला एक जगह பெய்யற இடம் ஒண்ணு, और बारिश होने वाला एक जगह. ஆகையினால इसलिए இது மாதிரி ஆபத்துக்கு சொல்லிட்டு வராது. इस प्रकार संकट जो है कह कर नहीं आता, நேரத்துல வரும், वो हमारे अनजाने समय पर आएगा. யோசிக்காத நேரத்துல வரும். अब ना विचार करने वाले समय पर आएगा. ஜெபம் பண்ணிட்டே இருப்ப, हाँ अच्छे प्रार्थना करते रहोगे, அப்பதான் ஆபத்து வரும். तभी ही हमारे जीवन में संकट आएगा. விசுவாசத்துல வாழ்ந்துகிட்டே இருப்ப, अच्छे विश्वास में बढ़ते रहोगे, அப்பதான் ஆபத்து வரும். तभी ही संकट आएगा. ஜெபத்தை வளர்ந்துகிட்டே இருப்ப, अच्छे प्रार्थना में बढ़ते रहोगे, அப்பதான் நீ ஆபத்து வரும். तभी ही जीवन में संकट आएगा. ஹalleluya हालेलुया. அவன் சாத்தாக் மேஷக் நல்ல விசுவாசத்தை வளர்ந்துகிட்டே இருக்கா. शाद्राक मेशक आबेदगो अच्छे विश्वास में बढ़ रहे थे. எதிர்பார்க்கிற ஆபத்து வருது பாரு. उनके अनजाने समय पर उनके लिए संकट आया. देखो அவங்களுக்காகவே
அந்த அக்கினி ஜுவாலை உருவாக்கப்பட்டது. उनके लिए ही वो आग की जो भट्टी बनाया गया, அதாவது அந்த 3 பேருக்காக அக்கினி ஜுவாலை உருவாக்கப்பட்டது. वो 3 लोगों के लिए ही वो आग की भट्टी बनाया गया, அதாவது 7 மடங்கு எரியுது பாரு. और 7 गुना जो भड़क रहा है, அதாவது சோர்ந்து போனார்களா? क्या वो निराश हुए क्या? சோர்ந்து போலையே. वो निराश नहीं हुए। அதாவது கர்த்தர் परमेश्वर இங்க கொண்டு வந்தாரு, यहाँ पर ले आया, அவருக்கு சித்தம் வந்தா வைப்பாரு, उसका इच्छा होगा तो मुझे रखेगा, சித்தம் எடுத்துக்கொள்வாரு. उसका इच्छा नहीं होगा तो मुझे ले लेगा। தைரியமா சொன்னா பாருங்க, वो एकदम தைரியமா சொன்னாங்க பாருங்க. वो हिम्मत के साथ कहा, அக்கினிக்குள்ள போறாங்க, वो आग के जाते हैं, ஒண்ணுமே சோதனை தொடல, उनके लिए कोई हानि नहीं पहुंचा। அக்கினி ஆபத்து வந்தா பயப்படக்கூடாது. वो आग का जो संकट आया तो डरना नहीं है। ராஜா பார்த்து தில்ல பேசுறா பாரு, और राजा को देख कर गर्व से कहते हैं, ராஜாவே உமக்கு தெரிந்திருக்க கடவுது, हे राजा आप जान लीजिए நாங்கள் ஆராதிக்க முடியாது, हम आराधना नहीं करेंगे। எல்லாம் தேசமே பாக்குது பாருங்க, पूरा देश उसको देख रहा है। நம்மால் சொல்ல முடியுமா? क्या हम कह सकेंगे क्या? ஆபத்தை பார்த்துட்டு संकट को देखकर போயான்னு சொல்ல முடியுமா? जाओ करके कह सकेंगे क्या? ஹல்லேலூயா, हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அப்ப நீ ஆபத்தில் வரும், तो संकट आएगा, திடீர்னு ஒரு ஆபத்துகளில अचानक आने वाले संकट में சோர்ந்து போக கூடாது. आप निराश नहीं होना है, யோபை நோக்கி பார்க்கணும். अय्यूब की ओर देखना है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா, हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। சாத்ராக் மேஷாக் ஆபத்தை நோக்கி பார்க்கணும். सातराक मेशक आबेदनेगो की ओर देखना है। திடீர்னு இந்த ஆபத்தை பாருங்க, अचानक आने वाले संकट को देखिए। தானியேலை பாருங்க, वैसे दानियल को நல்ல देखिए, ஜெபத்துல வளர்ந்துகிட்டு இருக்கான், अच्छा प्रार्थना में बढ़ रहा था, எல்லாம் ஜெபத்துல பிரகாசமா இருக்கிறான். अच्छे प्रार्थना में प्रकाशित बना हुआ அப்பதான் था, ஒரு ஆபத்து வருது. तभी ही संकट उसके जीवन में ஜெபம் आया। பண்ண கூடாது, प्रार्थना नहीं करना है, மீறி ஜெபம் பண்ணா उससे अलावा प्रार्थना करोगे तो சிங்ககபிக்கு போகணும். आपको सिंह के मान में डाला ஆபத்து जाएगा। வந்து பாருங்க, लेकिन वो छोड़ा नहीं। देखो சோர்ந்து போகல, वो निराश नहीं हुआ, வழக்கம் போல ஜெபம் பண்ணா, वो रीति के अनुसार प्रार्थना வழக்கம் किया, போல முழங்கால் படிட்டான், और रीति के अनुसार वो घुटना टेका, வழக்கம் போல பலகனி திறந்தான், और रीति के अनुसार द्वार को खोला, வழக்கம் போல வேண்டல் பண்ணினான். और वैसे ही मन्नत मांगा। அது ஒண்ணும் மாறல பாரு, कुछ भी नहीं बदला। देखो நேரங்கள் காலங்கள் மாறவில்லை, और समय और काल नहीं बदला। ஆபத்து காலத்திலே संकट के समय में சோர்ந்து போக கூடாது. हम निराश नहीं होना है। சோர்ந்து போனா यदि हम निराश உன் होंगे तो பலன் குறுகினது. आपका बल जो है कमजोर हो என்ன जाएगा। பலன்? वो क्या बल? சரீர பலன் கிடையாது, वो शरीर का बल नहीं, ஆவிக்குரிய பலன் குறுகினது. आत्मिक का बल कमजोर हो जाएगा। அதான் பரிசுத்த பவுல் சொன்னா, इसलिए पवित्र पौलुस ने என்னை कहा, பலப்படுத்த கிறிஸ்துவினாலே मुझे बलवंत करने वाला मसीह के द्वारा எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் இருக்கிறது. सभी कुछ करने के लिए मुझे बल है। அவ பலன் குறுக கூடாது. तो बल जो है कमजोर नहीं होना है। உள்ளான மனுஷன பலன் குறுக கூடாது. जो भीतरी मनुष्य का बल कभी कमजोर नहीं होना है। பலன் குறுகினது, बल कमजोर हो गया, பலன் குறுகினதுன்னா बल कमजोर हो गया तो ஜெபம் க்ளோஸ் ஆயிடும், प्रार्थना खत्म हो जाएगा। நீ சோதனையில आप आपके संकट में சோர்ந்து போவாயனா आप निराश होंगे तो ஜெபம் க்ளோஸ் ஆயிடும், आपका प्रार्थना खत्म हो जाएगा, க்ளோஸ் ஆயிடும், आपका विश्वास खत्म हो जाएगा, பரிசுத்தம் க்ளோஸ் ஆயிடும். आपका पवित्रता खत्म हो जाएगा। ஜெபம் ஒரு பலனே, प्रार्थना एक बल है, பரிசுத்தம் ஒரு பலனே, पवित्रता एक बल है, விசுவாசம் ஒரு பலனே. विश्वास भी एक बल है। இதெல்லாம் குறைஞ்சு போயிடும் பாரு. ये सब कम हो जाएगा। देखो ஆபிரகாம் अब्राहम விசுவாசத்தின் பலத்தினால, विश्वास के बल के द्वारा, அந்த விசுவாச பலத்தினாலதான் वो विश्वास के बल के द्वारा ही சரீரம் செத்து போனதால ஜீவன் அடைந்தது. वो शरीर मरा हुआ था लेकिन जीवन சாத்ராக் पाया। மேஷாக் ஆபேத்நேகோ शाद्राक मेशक आबेदनेगो விசுவாச பலத்தினாலதான் उनके विश्वास के बल के द्वारा ही அக்கினியை அவிழ்த்து போட்டார்கள். आग को ही उन्हें उतार कर डाल दिए। அதே போலதான் उसी तरह ही தானியேல் ஜெபத்தின் பலத்தினாலதான் दानियल की प्रार्थना के बल से ही சிங்ககபியை அடித்து போட்டார். वो सिंह के माद को ही उसने बंद कर दिया। எலியாவுடைய ஆவின் ஜெபத்தின் பலத்தினாலதான் और एलिया की प्रार्थना के बल से ही வானங்களை அடைத்து போட்டார். वो आकाश को बंद कर दिया வானங்கள் திறக்கப்பட்டது. और आकाश खोला गया। பரிசுத்த பலத்தினாலதான் और पवित्र बल के द्वारा ही யோசேப்பு நாட்களிலே यूसुफ के दिनों में இந்த பார்வோன் தேசத்தையே தன் கால்களை கொண்டு வந்தான். वो फारोन शहर को ही अपने पैरों को नीचे ले அப்ப आया। எல்லாம் ஒரு பலன் இருக்கு பாரு. तो इसमें सभी में एक बल है। देखो அதனால சோர்ந்து போன இடத்துல इसके लिए जब निराश होते हैं उस समय पर आपका बल जो है कमजोर हो जाएगा பலன் குறுகிடும், और पवित्र बल कमजोर हो ஜெப जाएगा, பலன் குறுகிடும். प्रार्थना का बल कमजोर हो जाएगा। பலன் குறுகிட்டா तो बल कम हो जाएगा। तो சில பேர் சொல்லுவாங்க, कई लोग कहते हैं டம்ளர் கூட என்ன தூக்க முடியல பாரு, एक ग्लास भी मुझसे उठा नहीं पा रहा है, டம்ளர் பிடிச்சு என்ன தண்ணி குடிக்க முடியல, और ग्लास उठाकर मैं पानी नहीं पी पा அவ்வளவு रहा हूँ, வீக்னஸ் ஆயிட்டு. तो उतना कमजोर हो गया हूँ। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதே போலதான் उसी तरह ही அந்த சோர்ந்து போவாயனா यदि आप निराश होंगे तो ஜெபம் தள்ளாடும் பாரு, वो प्रार्थना डगमगाएगा। देखो விசுவாசம் தள்ளாடும் பாரு, विश्वास भी डगमगाएगा, பரிசுத்தம் தள்ளாடும் பாரு. पवित्रता डगमगाएगा। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஆகையினாலே इसलिए ஆபத்து காலத்திலே, संकट के दिनों में, ஆபத்து நாட்களிலே, संकट के समय ஆபத்து पर, வேளைகளிலே संकट के कालों में நாம் சோர்ந்து போக கூடாது. हम निराश नहीं होना है। ஆபிரகாமை பார்க்கணும். अब्राहम को देखना है। ஆபிரகாமை பாருங்க. अब्राहम को देखिए। ஆபிரகாம்
तमाम எத்தனை ஆபத்து வந்தது, कितना संकट आया, எதுல சோர்ந்து போல பாரு, लेकिन किसी में निराश नहीं எதுல हुआ, சோர்ந்து போல பாரு. किसी में निराश नहीं हुआ। அதாவது அதே போலதான் उसी तरह ही சோர்ந்து போகாம இருக்கணும், हम சோர்ந்து निराश नहीं போகாம होना, இருக்கணும். हम निराश के बिना रहना। தாவீதை பாருங்க, दाऊद को देखिए, தாவீது சோர்ந்து போகவில்லையே, दाऊद निराश नहीं எத்தனை हुआ, ஆபத்து, कितना विपत्ति, எத்தனை ஆபத்து வந்தது, कितना विपत्ति आया, சோர்ந்து போகல. वो निराश नहीं நீ हुआ। எதற்காக சோர்ந்து போயிருக்கிறாய், आप किस कार्य के लिए निराश எந்த है, ஆபத்தை கண்டு, किस संकट को எந்த देखकर, நஷ்டத்தை கண்டு, किस नष्टों को எந்த देखकर, இழப்பை கண்டு, किस खोएपन को நீ देखकर, யாரை கண்டு சோர்ந்து போயிருக்கிறாய். आप किसे देखकर निराश हो இன்னைக்கு गए। சோறு விட்டு வெளியே வா, आज निराश को छोड़कर बाहर आइए, அன்பான தேவ பிள்ளையே, प्यारे परमेश्वर के நீ लोगों, சோறு விட்டு வெளியே வா, आपके निराश को உன் छोड़कर बाहर சோர்வை आइए, மாற்றி आपकी निराश को உன்னை बदलकर கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். आपको परमेश्वर आशीर्वाद करना चाहता है, சோர்வை மாற்றி निराशपन को உன்னை बदलकर கர்த்தர் மேம்படுத்த விரும்புகிறார். आपको उन्नति देना चाहता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीर्वाद இந்த करेगा। நாட்களிலே तो इस दिनों में சோர்வு निराश சோர்வு வாழ்க்கை விட்டு மாறணும், निराश जीवन से बदलना சோர்வு है, ஜீவித்தை விட்டு மாறணும். और निराश जीवन से இந்த हटना வாழ்க்கையை है। கெடுத்து போயிடும், आपके जीवन को உன் बिगाड़ ஜீவித்தை देगा, கெடுத்து போயிடும். आपके जिंदगी को बिगाड़ देगा। எதிலே சோர்ந்து போயிருக்கிற, इसलिए आप किस में எந்த निराश हो, ஆபத்தை கண்டு சோர்ந்து போயிருக்கிற, किस संकट को देखकर आप निराश हो, மரணத்தை கண்டு சோர்ந்து போயிருக்கிறாயா, क्या मौत को देखकर निराश हो क्या, வாழ்க்கையில வந்து நஷ்டத்தை கண்டு சோர்ந்து क्या போயிருக்கிறாயா, जीवन में आए नष्टों को देखकर निराश है எந்த क्या, ஆபத்து உனக்கு சோர்வு உண்டாக்கினது, नहीं तो कौन से प्रकार की विपत्ति आपके जीवन में नष्ट நினைச்சே हुई? பார்க்கல இப்படி ஆகுன்னு मैंने सोचा ही नहीं वैसा होगा। சிலர் சொல்லுவதை பார்க்கலாம். कई लोग कहते हुए हम நீ देख सकते நினைக்காத हैं, ஆபத்து வந்து விட்டதா, क्या उस प्रकार की विपत्ति நீ आप पर है யோசிக்காத क्या, ஆபத்து வந்து விட்டதா, आप ना सोचने वाली இந்த विपत्ति आप पड़ी ஆபத்தினால क्या, பெரிய நஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாயா, क्या उस संकट के द्वारा कई प्रकार की இந்த नष्ट हुआ है क्या, ஆபத்தினால பெரிய சோதரம் வாழ்க்கையில துக்கத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கிறாயா. इस संकट के द्वारा जीवन में बड़ी दुखों को झेल रहे हो ஆனா क्या, இன்றைக்கு लेकिन आज जो है, சோர்ந்து போகாத, आप निराश मत होइए, வெளியே வா. आप बाहर आइए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கர்த்தர் சோர்ந்து போனவனுக்கு परमेश्वर निराश होने को சத்துவங்களை கொடுத்து கர்த்தர் பெருக பண்ணுகிறவர், वो बल और सत्व देकर उसे சத்துவத்தை கொடுத்து பெருக பண்ணுகிறவர். उसे बल ताकत देकर दृढ़ करने ஆகையினால वाला। इसलिए சோர்வு எண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருக்காதே. आप निराश को गिन गिन कर मत ஆபத்து देखिए। நாட்களிலே சோர்வு, संकट के समय में निराश, எந்த ஆபத்து சோர்வு உண்டா இருக்கிறது, आप किस संकट आपको निराश लिया है, சரி வெளியே வா. उससे बाहर आइए। கர்த்தர் சோர்வை மாற்றி परमेश्वर निराश को बदल நீ कर இழந்து போன ஆசீர்வாதத்தை மறுபடியும் தந்து आप कोई आशीर्वाद फिर से देकर உன்னை ஆசீர்வதிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். आपको आशीर्वाद करने के लिए वो सामर्थ्य है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। இரண்டாவது, और दूसरा जो है, நாம எதிலே சோர்ந்து போக கூடாதா. हम किस में निराश नहीं होना है। ரோமரின் புஸ்தகம் रोमियो की किताब 2ஆம் அதிகாரம் दूसरा अध्याय சோத்திரம் 7வது வசனத்தை வாசித்து பார்ப்போமானால், उसका 7वां वचन हम पढ़ते समय, சோர்ந்து போகாமல் நற்கிரிகளை செய்து और निराश ना होते हुए अच्छी क्रिया மகிமையும் करो, கனத்தையும் அழியாமையும் தேடுகளுக்கு கர்த்தர் நித்திய ஜீவனை அளிப்பார். और स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमराद खोज में रहो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, அப்ப நற்கிரியை செய்வதில் சோர்ந்து போக கூடாது. तो अच्छी क्रिया करने में निराश नहीं होना है। நற்கிரியைகள், अच्छी क्रिया, கிரியைகள் நல்ல கிரியை இருக்கு, துர்க்கிரியை இருக்கு. और क्रिया में अच्छी क्रिया भी है, बुरी क्रिया நல்ல भी है। காரியம் செய்யணும், தீமை காரியம் செய்யணும். अच्छा कार्य भी करना और बुरा कार्य भी करना। அதனால தீமை காரியம் செய்வதற்கு சோர்வு வராது. आप बुराई कार्य करने में निराश नहीं आएगा, அது சோர்வு வராது பாரு. उसमें कभी निराश नहीं எத்தனை आएगा। தீமை செஞ்சாலும் कितनी बुराई करें तो भी சோர்வு வராது அவனுக்கு. उसमें कभी निराश नहीं आएगा, ஆனா நன்மை செய்வனுக்கு சோர்வு வரும். लेकिन भलाई करने वाले के जीवन में निराश आएगा। நற்கிரியைகளை செய்யணும், इसलिए अच्छी क्रिया करना है, நன்மை அல்ல, वो भलाई नहीं, நற்கிரியைகள், वो अच्छी क्रिया करना நல்ல है, காரியம் செஞ்சு. अच्छा कार्य करना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, நல்ல காரியம் செஞ்சா अच्छे कार्य करेंगे तो சோதனை 4 பேர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க தான் செய்வா. वो 4 लोग उसके विरोध करेंगे ही, நல்ல காரியம் செஞ்சா अच्छे कार्य करेंगे तो 4 பேர் குறை சொல்ல தான் செய்வா. और 4 लोग कमी कहेंगे ही। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, நல்ல காரியம் செஞ்சா अच्छे कार्य करेंगे तो 4 பேர் கோல் பேச தான் செய்வா. और 4 लोग उसके टट्टा उड़ाएंगे ही। நல்ல காரியம் செஞ்சா अच्छा कार्य करेंगे तो 4 பேர் கமிட்டி போட தான் செய்வா. और 4 लोग इकट्ठा होंगे ही। அதான் சோதம் ரோமர் 2:6 வாசிப்பாயனா, इसलिए रोमियो के 2:6 में தேவன் அவனவன் கிரிகளுக்கு தக்கதாக அவனவனுக்கு பலன் அளிப்பார். परमेश्वर उसके उसके अनुसार कामों के अनुसार उनको बदला देगा। பூமியில நீ என்ன செய்யறியோ அது ஆண்டவனுக்கு பலன் தருவார். इस पृथ्वी में जो कार्य आप करोगे परमेश्वर उसका बदला அதான் देगा। அவன் எதை விதைக்கிறானோ इसलिए वो जो बोता அதை है அவன் உனக்கு சோதனம் தருவான். वो उसे देगा।
எதை விதைக்கிறானோ நீ அதை அறுப்பாய். आप जो बोएगे उसे ही आप कटनी करोगे. நல்லதை நீ விதைச்சா நல்லதா அறுப்ப. तो आप अच्छे कार्य बोएंगे तो अच्छे कार्य நீ कटनी தீமை करेंगे. விதைச்சா தீமை அறுப்ப. आप बुराई कार्य बोएंगे तो बुराई कटनी அப்போ நீ करोगे. நற்கிரிகளை செய்யணும். तो उस प्रकार अच्छे क्रिया को करना है. நல்ல கிரியை செஞ்சுக்கிட்டே வரணும். अच्छा क्रिया करते आना है. தீமை செய்யக்கூடாது. आप बुराई करना ही नहीं है தீமை யோசிக்காத. और बुराई सोचना ही नहीं है. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. லாக்டவுன் காலத்துல इस लॉकडाउन के दिनों में தேவனுக்கு நல்ல காரியம் செஞ்சிருக்கா பாருங்க. कई लोग ने अच्छे कार्य किए. ஒரு வஸ்திரம் இல்லாத வஸ்திரத்தை கொடுத்தாங்க. जिन्हें वस्त्र नहीं था उन्हें वस्त्र दिए. ஒரு ஆகாரம் இல்ல ஆகாரத்தை கொடுத்தாங்க. और जिन्हें भोजन नहीं उन्हें भोजन दिए. ஒரு வாழ்க்கையில ரேஷனை கொடுத்தாங்க. और जीवन में अनाज रेशन को இதே दिए. போலதான் उसी तरह ही ஒரு மாநிலத்துல एक बेटे के पास ஒரு மாநிலத்துல एक शहर में சோத்திரம் 2 சகோதரர்கள் இருந்தார்கள். 2 भाई थे. நல்ல கொஞ்சம் பணம் இருக்கிறவங்க, वो வசதி अच्छे உள்ளவங்க. धनवानी थे. அவங்க எல்லா ரேஷன் எல்லாம் லாரிலேயே வாங்கி அனுப்பினா. वो सारे रेशन लॉरी भर कर लेकर उसे भेज दिए. எல்லா மக்கள் எந்தெந்த ஏழை சோத்திரம் கஷ்டப்படுறா. और जो भाग में लोग कष्ट उठा रहे हैं, சோத்திரம் கடைசியில எல்லா பைசா தீர்ந்துட்டு. अंतिम में सभी पैसा खत्म हो गया. அப்போ அவன் கையில ஒரே ஒரு கார் இருந்துதான். वो हाथों में एक एक कार था उसके पास. அந்த காரை வித்துட்டா. वो कार को भी उसने भेज दिया. காரை வித்துட்டு वो कार को भेजकर அதுக்கு எல்லா மக்கள் ரேஷன் அனுப்பி விடுறாப்பா. उसके द्वारा सारे लोगों को रेशन भेज दिया. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया. அப்போ இப்படிப்பட்ட நல்ல கிரியைகள், तो इस प्रकार की अच्छी क्रिया, நல்ல கிரியை பார்க்கணுமே. वो अच्छी क्रिया देखना है. அப்ப இந்த லாக்டவுன்லாம் எத்தனை பேருக்கு என்ன நல்ல காரியம் பண்ணியிருப்போம். तो इस लॉकडाउन के दिनों में हम कितने लोगों के लिए अच्छे कार्य किए होंगे எத்தனை பேர் நல்ல காரியம் செஞ்சிருப்போம். और कितने लोगों के लिए अच्छे कार्य किए होंगे. ஒரு 50 கிலோ அரிசியை தான் ஹெல்ப் பண்ணியிருப்போமா. एक 50 किलो चावल क्या हेल्प किए होंगे क्या. ஹalleluya. हालेलुया. ஒரு 50 கிலோ ரேஷன் எல்லாம் கொடுத்துருப்போமா. क्या एक 50 किलो राशन किसी को दिए होंगे. ஏதாவது கொடுத்துருப்போமா. யோசித்து பாருங்க. कुछ तो हम दिए होंगे करके सोच के देखिए. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया. அப்போ நீ பரலோகம் போனா तो आप स्वर्ग राज्य जाओगे तो எங்க ஆண்டவனுக்கு கிரீடத்தை தருவாரு. तो कहाँ परमेश्वर आपको मुकुट देगा. ஆக நல்ல கிரியை செய்து சோர்ந்து போக கூடாது. इसीलिए आप सुकर्म कार्य करने में अपनी निराश होना है. வாழ்க்கையில பணம் இல்லையே. तो जीवन में மறுபடியும் மக்கள் தேவையா இருக்காங்களே. तो फिर से लोग जरूरत के साथ है. அவள் யோசிச்ச கார் இருக்குது அல்லவா. तो ये सोचे कि कार है ना, காரை வித்துருவோம். उस कार को भेज देंगे. காரை வித்துருவோம். वो कार को भेज देंगे. ஹalleluya हालेलुया. நல்ல கிரியை செஞ்சிட்டே இருக்கணும். वो सुकर्म कार्य நல்ல करना கிரியை है. செஞ்சிட்டே இருக்கணும். सुकर्म कार्य करना நல்ல है. காரியம் செஞ்சிட்டே இருக்கணும். अच्छे कार्य करना है. நல்லதே செஞ்சிட்டே இருக்கணும். अच्छा ही करना है. ஹalleluya हालेलुया. இதுல சோர்ந்து போக கூடாது. इसमें निराश नहीं होना है. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. அதனாலதான் इसलिए ही பரிசுத்த பவுல் पवित्र पौलुस தீத்துக்கு எழுதுகிற போது तीतुस को लिखते समय தீத்தின் புஸ்தகத்துல तीतुस का किताब 2ஆம் அதிகாரம் 2 अध्याय 7-14 வாசிப்பீங்களா. 2ஆம் அதிகாரத்துல 2 अध्याय 7ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது 7वां वचन पढ़ते समय தீத்தின் புஸ்தகம் तीतुस की किताब 2ஆம் அதிகாரம் 7 வாசிப்பாமானா 2 अध्याय के 7वां वचन पढ़ते समय वहां पर लिखा है. ஹalleluya हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की நீயும் எல்லாவற்றிலும் तुम सब बातों में சோதரம் உன்னை நற்கிரிகளுக்கு மாதிரியா காண்பிக்கணும். अपने आप को भले कामों में नमूना बनाना है. ஹalleluya हालेलुया. எதுக்கு மாதிரியா காண்பிக்கணுமா. किसके लिए नमूना बताना है. நற்கிரிகளுக்கு மாதிரியா காண்பிக்கணும். भले कामों के लिए नमूना बनाना है. 14ஆம் வசனம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 14 वचन लिखा है. அவர் நம்மை वो हमें சகல அக்கிரமங்களின்றி மீட்டுக்கொண்டு सारे अधर्मों से छुड़ाकर தமக்குரிய சொந்த ஜனங்களாகவும் अपने खुद की प्रजा நற்கிரிகளை செய்ய பக்தி வைராக்கியமுள்ளவர்களாகவும் और अच्छी कामों के लिए जो भक्ति वैराग्य था நம்மை சுத்திகரிக்கும்படிக்கு हमें शुद्ध करने के लिए நமக்காக अपने लिए தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தாராம். वो अपने आप ही अर्पण किया. யோசித்து பாருங்க. तो सोच कर देखिए நாம் நல்ல காரியம் செய்வதற்காக हम भले काम करने के लिए இயேசு கிறிஸ்துவானவர் यीशु मसीह जो है நம்மை சுத்தம் பண்ணி वो हमें शुद्ध कर அவர் நமக்காக वो हमारे लिए சிலுவிலே பலியானார். वो क्रूस पर बलिदान हुआ சிலுவிலே ஒப்பு கொடுத்தார். और क्रूस पर अर्पण किया. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. நாளை நீங்க சிந்தித்து பாருங்க. तो इस दिनों में आप सोच कर देखिए, யோசித்து பாருங்க. विचार करके देखिए வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கோம். तो जीवन में हम किस प्रकार के जीवन जी रहे हैं. ஜீவித்திருக்கோம். किस प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं. நம்ம நல்ல கிரியை செஞ்சிருக்கிறோமா. क्या हमसे अच्छे भले क्रिया किए हैं क्या. நடைபிடிக்கப்பட்டு இருக்கிறோமா. क्या अच्छे क्रिया हमसे हुआ है क्या. हालेलुया
அதை நம்ம நல்ல கிரியை செய்யும்படியாக हम अच्छे कार्य करने के लिए நம்மை பக்தி வைராக்கியமுள்ள இருக்கும் நம்மை தாமே அவர் சுத்திகரித்து हम भक्ति वैराग्यता दिखाने के लिए अपने आप को शुद्ध அவரே कर சிலுவை ஒப்பு கொடுத்தார். वो अपने आप को क्रूस पर நீங்க अर्पण நம்ம किया। பண்றதெல்லாம் நல்ல கிரியா? क्या हम आज करने वाले सारे ஏதாவது काम நல்ல अच्छे காரியம் भले काम, பண்ணிருக்கோமா? क्या हम भले काम करते हैं क्या? சகோதரர், இந்த 9ஆம் மாதம் மட்டும் பாருங்க. केवल इस 9वें महीने को இந்த देखिए, 9வது மாதத்துல ये 9वें महीने में எத்தனை நல்ல காரியம் செஞ்சிருப்போம். कितने भले काम किए हैं। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சகோதரர், நல்ல காரியம் பண்ண குறை சொல்லி இருப்போம். हाँ, भले काम करने वाले को कमियां कहे होंगे அந்த நல்ல காரியத்தை தடை பண்ணி இருப்போம். और उसके लिए रुकावट ले आए होंगे। ஏன் 4 பேர் கூடி கோல் பேசி இருப்போம். नहीं तो 4 जन इकट्ठा होकर அப்ப टट्टे उड़ाए எப்படி होंगे। ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாரு? तो कैसा परमेश्वर ஆனா, நீ आशीर्वाद சோர்ந்து करे। போகாத. इसलिए आप निराश मत அவன் होइए। அப்படி சொல்லிட்டானே, उसने वैसा कह दिया, இப்படி சொல்லிட்டானே, इसने ऐसा कह दिया, ஆனா இவன் நல்ல காரியத்தை நிப்பாட்டாத. इसलिए आपके भले कामों को रोकिए मत, நல்ல கிரியை செஞ்சுக்கிட்டே இரு. अच्छा क्रिया करते 1000 रहिए। பேர் 1000 பேசட்டும். 4 जन 1000 बैठ சகோதரர், कर 4 பேர் நல்லா கூடி பேசட்டும். और 4 जन इकट्ठा होकर நீ कहने दीजिए। நல்ல காரியத்தை செய்ய மறக்காத. आप अच्छे कार्य करने के लिए आप कभी அதனால मत உனக்கு भूलिए। நித்திய ஜீவன் இருக்கிறது. उसके द्वारा आपको अनंत जीवन है। அதான் சோதரர் பரிசுத்த பவுல் சொன்னார் பாருங்க ரோமர்ல, वही पवित्र पौलुस ने रोमी में कहा, தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகும், परमेश्वर के लिए महिमा होगा அதனால உனக்கு நித்திய ஜீவன் இருக்கிறது, और उसके द्वारा ही आपके अनंत உனக்கு जीवन பெரிய है। ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது. उसके लिए आपको आशीर्वाद है। நல்ல கிரியை செய்வதற்கு अच्छे क्रिया करने के நாம் लिए மாதிரி கத்த வைத்து வைக்கணும். परमेश्वर के लिए नमूना बनना சோதரர், है, மாதிரியா இருக்கணும். नमूना रहना है। வேதத்தில் உலகத்து अनेक மக்களை பார்க்கலாம். इस शास्त्र में कई लोगों को देख சோதரர், அன்னை தெரசாவை பார்க்கலாம். अन्य तेरेसा को देख அன்னை सकते हैं, தெரசாவை குறித்து माता तेरेसा को देखने के உனக்கு लिए அநேக உலகமே அன்னைக்கு சாட்சியம் சொல்லுகிறது. आज सारे संसार उनके विरुद्ध गवाही சோதரர், कहते हैं। அநேக கைவிடப்பட்ட மக்களை, कई त्यागे हुए சோதரர், मनुष्य को, கைவிடப்பட்ட ஜனங்களை, कई त्यागे हुए लोगों को சோதரர், கைவிடப்பட்ட குழந்தைகளை, और त्यागे हुए बच्चों को, எல்லாவற்றையும் சோதரன் காப்பாற்றி வந்தார். सभी लोगों को उन्हें रक्षा सुरक्षित करके ले आए। எல்லாவற்றையும் காப்பாற்றி வந்தார். सभी लोगों को रक्षा करके ले आए। சோதரர், நல்ல காரியம் செஞ்சுட்டு வந்தார் பாருங்க. वो अच्छे कामों को करके आए। देखो, हालेलुया। ஹல்லேலூயா. குஷ்டரோகமுள்ள மக்களை, जो कोड़े के வியாதி बीमारी உள்ள के, மக்களை, जो बीमारी लोगों को, நோய்வாய்ப்பட்ட மக்களை जो தான் रोग கையாலே पड़े, சுத்தம் பண்ணி वो अपने हाथों से தான் शुद्ध கையாலே करके, எல்லாவற்றையும் சரி செய்து अपने हाथों से सबको அவரை ठीक कर காப்பாற்றி कर வந்தாரு. उन्हें बचा कर ले आए। நல்ல காரியம் நடக்கணுமே. वो अच्छा काम होना है। நாம் நல்லா இருக்கிற மக்களை தொட மாட்டேங்கிறோம். हम अच्छे मनुष्य को ही छूते नहीं है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। இன்னைக்கு நாம் யோசித்து பார்க்கணும். आज हम सोच कर देखना है, நல்ல கிரியை செஞ்சுட்டு இருக்காமா? क्या हम अच्छे कार्य कर रहे हैं क्या? இன்னைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையில அதை எதிர்பார்க்க முடியல. तो आज हमारे जीवन में उसे நம்ம देख नहीं வாங்கி पाते। வாங்கி பழகிட்டோம் பாருங்க. हम ले लेकर आदत हो गया हमारा, வாங்கி வாங்கி பழகிட்டோம். ले लेकर हम आदत ஆனா डाल लिए। கொடுத்து பழகல பாரு. हम देकर आदत नहीं சோதரர், डाले। கொடுங்கள் அப்போது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார். दो तभी तुम्हें दिया जाएगा करके परमेश्वर कहा है। கொடுங்கள் கொடுங்கள் அப்போது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். दो तभी तुम्हें दिया जाएगा। சோதரர், கொடுத்தாதான் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாரு. देंगे तो ही परमेश्वर நீ में எதை आशीर्वाद விதைக்கிறதோ करेगा। அதை அறுக்க முடியும். आप जो बोएगे उसे ही कटनी அப்ப करोगे। நீ நல்லதே செஞ்சுட்டு வா, तो वैसे अच्छे कामों को நல்ல कीजिए, காரியமே பண்ணிட்டு வா. अच्छे कार्य को ही करते அப்ப आइए। ஆண்டவராகிய தேவன் तब प्रभु உங்க परमेश्वर வாழ்க்கை ஜீவிதத்துல आपके जीवन में जिंदगी பெரிய में காரியம் செய்வார். वो बड़े कार्यों को करेगा। அதனால इसलिए நீ சோர்ந்து போகாத. आप निराश मत होइए। சோதரர், நல்ல காரியம் செய்ய சோர்ந்து போகாத. आप अच्छे काम करने में निराश சோதரர், मत அந்த होइए। மனுஷன் இப்படி சொல்லிட்டான், वो मनुष्य ऐसा कह சோதரர், दिया, அந்த அம்மா இப்படி சொல்லிட்டாங்க, इस माता ने ऐसा कह दिया, நீ சோர்ந்து போகாத. इसलिए आप निराश मत होइए। ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு சமயம் एक समय पर அநேக மக்கள் कई लोग பலவிதமான காரியங்களை பேசிட்டே வந்தா. कई प्रकार के कार्य को बात करते आ रहे थे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எலியா போயிட்டு இருக்காரு, एलिया जा रहा था அதுக்கு பின்னாடி எலிசா போயிட்டு இருக்காரு. और उसके पीछे एलिसा जा रहा है। எலிசா எல்லாம் கிண்டல் பண்ணா. एलिशा को सभी लोग तमाशा किए, சோர்ந்தே போகலையே, वो कम नहीं हुआ, அவன் சோர்ந்தே போகலையே, वो निराश नहीं हुआ, சோர்ந்தே போகலையே. वो निराश नहीं हुआ। அது எனக்கு தெரியும், वो मैं जानता हूँ, நீ சும்மா இருன்னு சொல்லிட்டு போனா. आप लोग शांत रहिए करके அது कहा। எனக்கு தெரியும், वो मैं நீ जानता हूँ, சும்மா இரு. आप शांत रहिए। ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அதே போலதான் இயேசு கிறிஸ்து उसी तरह यीशु मसीह ஒரு சீமோன் வீட்டுல சோதரன் வந்து இருக்கிறாரு. वो सीमोन के घर में दावत में बैठे हुए थे। அப்ப வந்து இருக்கிற போது ஸ்திரீ வந்தா. उस प्रकार दावत के समय एक அவள் स्त्री என்ன आई थी। செய்தா? उसने क्या किया? கண்ணீரினால अपने आंसुओं के द्वारा அவள் பாதத்தில் நினைந்தாள். उनके चरणों को धोया பரிமள தைலத்தால் பாதத்தில் நினைத்து और बहुमूल्य इत्र के द्वारा அவள் வாழ்க்கையில தன் தலைமையில துடைத்து கொண்டு அழுது கொண்டு இருக்கிறார். अपने सिर के बालों के द्वारा उसे पोंछ कर वो रो रही थी।
அப்போ வாழ்க்கையில ஜீவித்துல तो उसके जीवन में जिंदगी में சோதரம் அவ சீசர் எல்லாம் பாக்குறாங்க तब सारे चेले देख रहे हैं இந்த பணத்தெல்லாம் இந்த தைலத்தை வித்து பணத்தை ஏழைகளுக்கு கொடுத்துருக்கலாமே कि इस इतर के बेच कर गरीबों में बांट सकते थे इस पैसे को நஷ்டப்பட்டால इस पैसे सारे नष्ट कर दिया சொல்லுகிறார்கள் ऐसे सब चेले कह रहे थे ஹalleluya हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो ஹalleluya हालेलुया அப்போ तभी இயேசு சொன்னா இவளை தடை செய்யாத यीशु मसीह ने कहा इसे रोके मत சோதம் குறை சொல்லாத इसके बारे में कमी मत என்னை कहिए பற்றி எங்கெங்க சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுகிறதோ इसके बारे में जहाँ-जहाँ सुसमाचार बताया जाएगा இவளை பற்றி சுவிசேஷம் சொல்லணும் उसके सभी जगह में इसके बारे में कहना है ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया அப்ப நல்ல கிரியை செஞ்சிருக்காளே क्योंकि उसने अच्छे कामों को किए யோசித்து பாருங்க तो सोच कर देखिए சிந்தித்து பாருங்க विचार कीजिए சோதம் நல்ல கிரியை செய்யல अच्छा कार्य करने में அநேக பிரச்சனை வரும் कई प्रकार की परेशानी आएंगे வார்த்தைகள் வரும் निराश भरे हुए शब्द आएंगे சோதம் கோல் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பா कई लोग टट्टे उड़ाते रहेंगे டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பா आपको இன்சல்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பா आपको अपमान करते रहेंगे இத சோர்ந்து போகாத लेकिन आप निराश मत होइए ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर की पवित्र नाम की அதே महिमा தீத்து புஸ்தகத்துல उसी तीतुस की किताब 3ஆம் அதிகாரத்துல तीसरा अध्याय 14வது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கிற போதோ 14 वचन पढ़ते समय தம்முடையவர்களும் अपने लोग கனியற்றவர்களாயிராதபடிக்கு जो बिना குறைகளை फल நிர்வாக்குவதான जो कमियों को पूरा करने वाला நற்கிரிகளை செய்ய பழகட்டும் जो अच्छे कामों को करने के लिए सीखे ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया அப்போ நல்ல கிரியை செஞ்சிட்டே இருந்தா तो अच्छे क्रिया करेंगे तो நம்மளோட குறையெல்லாம் நிறைவாக்குவான் பாருங்க हमारे सारे कमियां वो भर जाएंगे ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया சோதர கனியற்றவர்களாயிராதபடிக்கு जो बिना फल குறைகளை के समान நீக்குவதற்கு ஏதுவான जो कमियों को पूरा करने वाले இந்த நல்ல கிரியை செய்ய वो अच्छे कामों को कीजिए ஹalleluya हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஆகினால இந்த நல்ல கிரியை तो अच्छी क्रिया உன் கனி இல்லாத வாழ்க்கையை மாற்றுகிறது जो बिना फलदायक जीवन को ஆவிக்குரிய बदलता குறைகளை है மாற்றுகிறது और आत्मिक की कमियों को बदलता है ஆவிக்குரிய தன்மைகளை மாற்றுகிறது और आत्मिक की स्थितियों को बदलता है ஆவியில் குறை இல்லாத சோதம் கனி இல்லாத வாழ்க்கை तो आत्मिक में बिना फलदायक जीवन வாழ்க்கையில ஒரு வளர்ச்சி இல்லாத வாழ்க்கை और जीवन में बिना एक बढ़ोतरी के நல்ல जीवन காரியம் செய்கிற போது लेकिन ये अच्छे काम करते அது समय வாழ்க்கையில वो जीवन में சோதம் குறையை நிறைவாக்குறதாம் वो कमियों को पूरा करता देखो அந்த புரதியாதி அந்த கொன்னிலை பார்க்கலாம் जो अन्य जाति उस कोरनेल को देख सकते हैं நல்ல காரியம் செஞ்சிட்டே இருக்கான் ये अच्छा कार्य कर रहा था நானும் தான தர்மம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான் பாருங்க अच्छे दान धर्म कर रहा இத था வந்து தேவசன்ல கண்ண எட்டினது ये सब परमेश्वर के चरणों में जाकर जा पहुंचा वो सत्य को ना जानने वाला वो कुछ भी ना जानने वाला அவனை लेकिन परमेश्वर उसे அபிஷேகம் பண்ணினான் उसे चुनकर उसे अभिषेक किया வேறு பிரித்தா उसे अलग किए விசேஷமான மனுஷனா மாற்ற और विशेष रीति का मनुष्य के दौर पे बदला गया நீங்க யோசித்து பாருங்க तो इस दिनों में आप सोच कर देखिए பாருங்க आप विचार करके देखिए நல்ல கிரியை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் क्या मैं अच्छे कामों को कर रहा हूँ क्या அதனால சோர்ந்து போகாத इसलिए आप निराश मत होइए பலரும் பேசிட்டே இருப்பா कई लोग कई प्रकार की बातें करेंगे அவி ஒண்ணும் செய்ய மாட்டா लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो அவர்களால் ஒண்ணும் செய்ய முடியாது तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे அவர்கள் ஜாட அடிக்க மாட்டா वे लोग झाड़ू नहीं मारेंगे அதுக்கு மட்டும் குறை சொல்லுவா उसके लिए केवल कमी அவள் कहेंगे எதையும் சோத க்ளீன் பண்ண மாட்டா अब वो किसी साफ सफाई नहीं உதவி करेंगे செய்ய மாட்டார்கள் लेकिन किसको सहायता ஆனா नहीं குறை करेंगे சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் लेकिन कमियां कहते रहेंगे ஹalleluya हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा அப்ப हो இந்த நாட்களிலே तो इस दिनों में அந்த நற்கிரிகளை अच्छे क्रियाओं செய்ய को பழகணும் हम करना सीखना அது है மாதிரியா இருக்கணும் उसके लिए हम அந்த नमूना நல்ல बनना है கிரியை वो अच्छी நம்ம क्रिया குறைகளை மாற்றும் हमारी कमियों को बदलता है அதை இன்னும் கொலேசில வாசிப்போம்னா वो अधिकता से कोलोसे में पढ़ते கொலேசில समय அதே 1ஆம் அதிகாரம் 10 வாசிக்கிற போது कोलोसे की किताब पहला சகல अध्याय விதமான 10 நற்கிரிகளுமாகிய जो अच्छी तुम्हारे चाल चलन கனிகளை தந்து जो फल को देखकर தேவனை அறிகிற அறிவில் விரித்தடைந்து और परमेश्वर के ज्ञान में கர்த்தருக்கு बढ़कर பிரியமுண்டாக அவைகளுக்கு பாத்திரமாக நடந்து கொள்ளவும் और परमेश्वर के प्रिय और उसके बर्तन के அப்ப समान இந்த हम बन जाएंगे நற்கிரிகளாகிய கனிகளை தரணும் जो अच्छी क्रिया कहने वाले हम சகல फल விதமான நற்கிரிகள் வந்து கனியா மாறுது वो सभी प्रकार की जो क्रिया है वो अच्छी फल हालेलुया। बनता है हालेलुया இந்த கனி जो फल है தந்து वो देकर கர்த்தருக்கு பாத்திரமா நடக்கணும் और परमेश्वर के लिए प्रिय बर्तन के समान बनना கர்த்தருக்கு है பாத்திரமா நடக்கணும் परमेश्वर के प्रिय बर्तन के समान बनना है हालेलुया हालेलुया ஹalleluya हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर की
पवित्र नाम की महिमा हो। நாம் யோசித்து பார்த்து तो इस दिनों में सोच நாம் कर சிந்தித்து देखकर பார்த்து हम विचार कर என் வாழ்க்கையில मेरे जीवन என் में ஜீவித்தில मेरे जिंदगी में நல்ல கிரியை இருக்குதா? क्या अच्छी क्रिया है क्या? இன்னும் பரிசுத்த பவுல் எபேசியருக்கு எழுதுகிற போதோ और भी पवित्र पौलुस எபேசியர் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரத்துல एबीसी किताब दूसरा अध्याय 10ல வாசிக்கிற போதோ 10 में पढ़ते समय ஏனெனில் क्योंकि நற்கிரியை செய்வதற்கு हम अच्छे कामों நாம் करने के लिए கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு हम मसीह यीशु मसीह में தேவனுடைய सृष्टि செய்கையா இருக்கிறோம். हम पहले से அவைகளினால் நடக்கும்படி நாம் முன்னதாகவே நம்மை கர்த்தர் ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார். और उसके अनुसार चलने के लिए पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் परमेश्वर நம்ம நற்கிரியை செய்யும்படியே சிருஷ்டிக்கப்பட்டு இருக்கிறார். हम जो है अच्छी क्रिया करने के लिए हमें सृष्टि किया முன்னதாகவே நாம் அவரால் அறியப்பட்டு இருக்கிறோம். और पहले से हमारे कारण के लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। इसलिए நற்கிரியை செய்வதில் சோர்ந்து போகக்கூடாது. अच्छी क्रिया करने के लिए हम कभी निराश नहीं होना சோர்ந்து और போகக்கூடாது. संकट के समय में निराश नहीं होना है। யோசித்து பாருங்க. इस दिन में सोच कर देखिए 10வது மாதத்திலே इस 10वें महीने में முதலாவது பரிசுத்த நாளிலே ये पहले पवित्र दिनों में 4வது நாளிலே इस चौथे दिनों में சோர்ந்து போயிருக்கிறீங்களா? क्या आप निराश हुए क्या? எங்க பின்மாற்றமா இருக்கீங்க? कहाँ आप पीछे हटे हुए கர்த்தர் हैं? உங்களோட இடைப்படுவாரா? परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा இன்னும் நல்ல கிரியை செய்யுங்க. और भी अच्छे क्रिया को இந்த कीजिए। ஆபத்துல எத்தனை பிரச்சனை சோர்ந்து போகாதீங்க. इसीलिए आप संकट में कभी निराश கர்த்தர் मत பெரிய होइए। காரியம் செய்ய வல்லவரா இருக்கிறார். परमेश्वर बड़ा काम करने के लिए सामर्थ्य है। கரங்களை உயர்த்தி इसीलिए सभी हाथों को ஆபத்து उठाते வருகிற हुए போதெல்லாம் हमारे सारे संकट சோர்ந்து போகாமல் हम ना निराश होते கால हुए பரிசுத்தவான்களை போல जो बीत गए पवित्र கர்த்தரையே लोगों के தேடி समान பார்க்க परमेश्वर के ढूंढ को देखने के लिए அனுக்கிரகம் பண்ண வேண்டும். परमेश्वर में अनुग्रह करना நல்ல है கிரியை செய்வதற்கு और अच्छी क्रिया करने के சோர்ந்து लिए போக கூடாது. हम निराश नहीं होना है। ஆண்டவரே என்று சொல்லி हे प्रभु कर कर எல்லா கரங்களெல்லாம் ஸ்தோத்திரம் थोड़ी பண்ணுவோம். देर हाथ तक उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। சோதரம் 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 தகப்பனே சோதரம் 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 அல்லாண்டவரே சோதரம் 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 பைஷலாட மக்கு நன்றி அல்ல தகப்பனே சோதரம் 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 சோதரா பைஷாலா மீனா நாமா துராரா பஷக்க நிகாமா மீனா நாமா அல்லாண்டவரே சோதரம் 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 சோதரா ஓ பைஷாலா மீனா நாமா துராரா பஷக்க நிகாமா மீனா நாமா துராரா அல்லாண்டவரே சோதரம் ஹல்லேலூயா சோதரம் ஆண்டவராகிய தேவே प्रभु परमेश्वर சோதரம் சோர்வுகளை மாற்றும்படியா आपके निराशपन को बदलने के लिए ஆபத்து காலத்திலே संकट के समय पर சோர்வுகளை மாற்றும்படியா आपके निराशपन को बदलने के लिए கிரிகளை செய்து अच्छे क्रिया कर சோர்வுகளை கத்த மாற்றும்படியா और निराश होने वाली क्रिया को बदलने के लिए கரத்தை நீட்டி இருக்கிறார். परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाया है। தமது கரத்தை நீட்டி இருக்கிறார். परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाया है। பிரைஷாலா மீனா நாமா துராரபா பௌரி காமா உரரபா ஷகனி காமா மீனா நாமா துராரபா நல்ல ஆண்டவர் நல்ல ஆண்டவர் நல்ல ஆண்டவர் நல்ல ஆண்டவர் இறங்கட்டும். சோறுகள் மாறட்டும். ஓ இந்த 10வது பரிபூர்ண நன்மைகளை கடந்து வரட்டும். इस 10वें महीने परिपूर्णता की भलाई आने दीजिए। சோதரம் 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 करने वालों उठो चलो यीशु बुलाता तुम्हें गिरने वालों उठो चलो यीशु बुलाता तुम्हें छोड़ दो डरना अब काहे मरना हुआ है जिंदा यीशु मसीह छोड़ दो डरना अब काहे मरना हुआ है जिंदा यीशु मसीह देता खुशी सारे महिमा उसके पैदा हुआ बना इंसान देखवागा शैतान ला 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 नारे लगाओ जय गीत गाओ शैतान हुआ परेशान नारे लगाओ जय
हमेशा ताली बजाओ नाचो गाओ यीशु हुआ मेरे बाप ताली बजाओ नाचो गाओ यीशु हुआ मेरे बाप यीशु मसीह देता खुशी सारे महिमा उसकी पैदा हुआ बना ईसा देखो बड़ा शैतान हालेलुया 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 लंगतरे सोदरी बो हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे स्तुति हो आबत काल सोंदरा मिलके कते कृपा कते सोदरी बो संकट के समय में निराश ना होते हुए परमेश्वर में अनुग्रह करने के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे स्तुति हो நல்ல கிரியைகள் செய்து சொந்த भगवान मरके तनकरके பண்ணமுடிய कते सोदरी बो अच्छी क्रिया करने में निराश ना होते हुए परमेश्वर में अनुग्रह करने के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे स्तुति हो हालेलुया हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो மூன்றாவதாக பார்ப்போமானா और तीसरा हम देखते समय நீதிமொழி புத்தகம் और नीति वचन की किताब மூன்றாம் அதிகாரம் तीसरा अध्याय 11வது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது उसका 11 वचन என் மகனே मेरे बेटे நீ கர்த்தருடைய சிட்சையை அற்பமா எண்ணாதே और परमेश्वर की ताड़ना को तू அவர் तुच्छ मत கடிந்து जाना கொள்ளும்போது சோர்ந்து போகாதே और उसकी शिक्षा में कभी निराश ना होना மூன்றாவதாக और तीसरा जो है கர்த்தர் கடிந்து கொள்ளுகிற போது சோர்ந்து போக கூடாது परमेश्वर की शिक्षा में कभी हम निराश नहीं होना है हालेलुया 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 அப்ப ஆண்டவராகிய தேவன் तो प्रभु परमेश्वर அன்பாய் இருக்கிறவர் மட்டுமல்ல वो केवल प्रेमी परमेश्वर नहीं है அவர் இரக்கமுள்ள தேவன் மட்டுமல்ல वो केवल दयालु प्रभु அவர் नहीं है உதவி செய்கிற தேவன் மட்டுமல்ல और केवल वो सहायता करने वाला प्रभु नहीं அவர் है கடிந்து கொள்ளுகிறவர் वो शिक्षा करने वाला प्रभु है हालेलुया हालेलुया அப்ப கடிந்து கொள்ளுகிற போது वो जब ताड़ना देता है நீ சோர்ந்து போகாத आप निराश मत होइए கர்த்தருடைய சிட்சை அற்பமா எண்ணக்கூடாது और परमेश्वर की ताड़ना को कभी तुच्छ नहीं जानना அப்ப है ஆண்டவர் சில சிட்சைகளை அனுப்புவார் और परमेश्वर कई प्रकार की ताड़ना को देता भेजता है அது அற்பமா எண்ணக்கூடாது और उसे कभी हम तुच्छ नहीं जानना है சும்மா வந்துட்டு ये ऐसे ही आ गया அப்படி நினைக்கவே கூடாது ऐसा कभी सोचना नहीं है எல்லாருக்கும் வந்துட்டு वो सभी को आ गया பக்கத்துல வந்துட்டு அது எனக்கு வந்துட்டு हाँ बाजू में आए इसलिए मुझे भी आ गया சொல்லுவா कई लोग कहते हैं பக்கத்துல வந்துட்டு बाजू में आ गया அது எனக்கு வந்துட்டு वो मुझे आ गया நான் அங்க போயிட்டு வந்தேன் मैं वहां पर जाकर आया குடிச்சிட்டேன் मैं वहां पर पी के அப்படியே आया வந்துட்டு इसके तुरंत आ गया சொல்லக்கூடாது ऐसा कहना नहीं है ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஏனென்றால் क्यों कहेंगे तो ஒன்று ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் சொல்றாரு உன் தலையில் இருக்க முடியெல்லாம் எண்ணப்பட்டு இருக்கிறது परमेश्वर कहते हैं कि तेरे सिर के एक एक बाल गिना गया है ஆண்டவர் மேல கண்ணை வச்சிருக்கிறார் क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि रखा है ஆண்டவருக்கு தெரியாம வராது பாரு तो परमेश्वर के अलावा कुछ भी आपके जीवन में आएगा தெரியாம ஒண்ணுமே நடக்காது பாரு और परमेश्वर के जाने बगैर कुछ भी आपके जीवन में சரீரத்துல आपके शरीर में தேவனுடைய அனுமதி இல்லாம ஒண்ணும் நடக்காது परमेश्वर के बिना अनुमति के कुछ भी नहीं होगा நம்முடைய குடும்பத்திலே தேவன் அனுமதி இல்லாம ஒண்ணும் நடக்காது हमारे परिवार में परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होगा ஹalleluya அதான் கர்த்தருடைய சிட்சை அற்பமா எண்ணாத इसलिए परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ मत கடிந்து जानना கொள்ளுகிற போது நீ சோர்ந்து போகாதே और उनकी शिक्षा करने में आप कभी निराश नहीं அப்ப होना ஆண்டவர் ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக நம்ம அடிக்கிறார் परमेश्वर कोई तो कार्य के लिए हमें वो मार रहा है அதுக்குனால அடிக்கும்போது इसीलिए वो मारते समय சோர்ந்து போகாது हम निराश मत होइए சில பேர் அடிக்கிற போது कई लोग मारते समय சில வலிக்கு செய்யாது कई लोग को दुखता ही नहीं है சில நேரம் அடிப்பாங்க சில வலிக்கு செய்யாது कई लोग मारते कई लोग दुखता नहीं है சில சும்மா தட்டுவாங்க कई लोग ऐसे ही அது मारते ரொம்ப வலிக்கும் பாருங்க वो बहुत लग जाता है ஹalleluya हालेलुया சில பேர் லைட்டா தான் தட்டுவா ஏதாவது பொருளை कई लोग को हल्का से एक वस्तु को मारते அது हैं உடைஞ்சு போயிடும் பாரு वो टूट जाता है ஹalleluya हालेलुया ஆண்டவர் परमेश्वर அது போல தான் சில நேரத்துல उसी तरह कई समय में கடிந்து கொள்ளார் என்றா वो ताड़ना देते समय லைட்டா தட்டுவாரு वो हल्का मारते அது சோதரம் ஒண்ணுல திருந்திரும் एक में ही सुधर जाता है அப்ப சில லைட்டா தட்டுவாரு और कई को हल्का मारते हैं அப்ப சில உடையும் और कभी टूटता है ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया அது போல தான் उसी तरह ही ஆண்டவர் சில நேரத்துல நம்ம அடிப்பார் कई समय परमेश्वर में मारते हैं அதான் கடிந்து கொள்ளுதல் वही ताड़ना देना அது ஒரு சமயம் एक समय पर ஒரு மீரியாவை பார்க்கலாம் मिरियाम को देख सकते हैं மீரியாம் ये मिरियाम அது மோசேக்கு முறுமுறுத்தா பாரு मूसा के विरोध गुड़गुड़ाने लगी அது ஆரோனும் ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா சேர்ந்துட்டா हारून और ये दोनों एक जो एक मिल गए மீரியாம் ஆரோன் ஒண்ணா சேர்ந்துட்டா பாரு मिरियाम और हारून एक हो गए ஆரோன் देखो தப்பிச்சிட்டான் பாரு ये हारून बच गया देखो இவன் தான் மீரியாம் தான் முன்னணி பாடகர் और
और ये जो मिरियम है वही गायिका है இவன் மோசம் அந்த வயல் வந்தெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கா பாரு. और मूसा के विरोध जो मुंह में आया सब कुछ बात कर रही है. கர்த்தர் சும்மா கோபப்பட்டார் பாரு. परमेश्वर ने ऐसे ही नाराज हुए. சில பேர் கோபப்பட்டாலே कई लोग नाराज होंगे तो சில பெற்றோர்கள் பார்க்கலாம். कई माता पिता को देखेंगे. அந்த கோபப்பட்ட சில பேர் பெற்றோர்கள் கோபப்படும் போது जब माता पिता जब गुस्सा होते हैं சின்ன பசங்க அப்படி எல்லாமே போயிடும் பாரு. और छोटे बच्चे वैसे सब कुछ चले जाते हैं. துணி மணியில் அப்படியே நனைஞ்சு போயிடும் பாரு. वो कपड़ा सब वैसे निकाल के चले जाते हैं. கோபப்பட்டாலே वो गुस्सा होंगे तो हालेलुया 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 हालेलुया. அப்ப இயேசு அப்படிதான் கோபப்பட்டு தேவன் அப்படிதான் கோபப்பட்டுக்கிறார். यीशु मसीह भी वैसे ही नाराज हुए. கோபப்பட்ட உடனே वो नाराज गुस्सा होते ही நல்லா இருந்தவா वो अच्छा थी वो கைக்கெல்லாம் வெண்குஷ்டம் ஆயிட்டு பாரு. उसके हाथ पैर सफेद कोड़ा हो गया देखो. हालेलुया 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 हालेलुया. அது போலதான் उसी तरह ही ஏன் வந்துட்டு ये क्यों आ गया? நீ பக்கத்துல வந்தனால வரல. ये बाजू में आया इसलिए नहीं आया. ஏதோ கர்த்தர் உன்னை தட்டி இருக்கிறார். कुछ तो परमेश्वर आपको அப்ப நீ திருந்தணும். उसमें आप सुधरना है. ஏன் திருந்தணும்? क्यों सुधरना है? நீ சரிபடணும். आप ठीक होना है. ஆகினால தான் கர்த்தர் கடிந்து கொள்றாரு. इसीलिए ही परमेश्वर आपको टालना दे रहा है. சோர்ந்து போக கூடாது. इसमें आप निराश नहीं होना है. हालेलुया हालेलुया. ஏனென்றால் क्यों कहेंगे तो தாவீது ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுத்தான். दाऊद ने एक बच्चे को उत्पन्न किया. தாவீது ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுத்தும் போதோ दाऊद ने जब बच्चे को जन्म दिया அந்த பிள்ளையை கத்த அடிச்சாராம் பாருங்க. उस बच्चे को परमेश्वर ने मारा. देखो யாரு திருந்தன அடிச்சாரு? वो कौन सुधरने करके मारा? தகப்பன் திருந்தணும். वो पिता सुधरना है. தகப்பன் திருந்துவதற்காக पिता सुधरने के लिए கை கத்தர் கை எங்க வச்சாரு? परमेश्वर ने हाथ कहाँ पर रखा? அந்த பிள்ளை மேல கை வச்சாரு பாரு. बच्चे के ऊपर हाथ रखा. हालेलुया 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 हालेलुया. அது போல उसी तरह ही சோதனை சில திருந்துவதற்காக எங்கெங்க தேவன் கை வைப்பார் அவருக்கு தான் தெரியும். और कई लोग सुधरने के लिए परमेश्वर कहाँ कहाँ हाथ रखेंगे? மனைவி परमेश्वर. திருந்துவதற்காக புருஷனை கை வைப்பாரு. और पत्नी सुधरने के लिए पति के ऊपर हाथ रखेगा. புருஷன் திருந்துவதற்காக மனைவி கை வைப்பாரு. और पति सुधरने के लिए पत्नी के ऊपर हाथ रखेगा. பிள்ளைகள் திருந்துவதற்காக பெற்றோர் மேல கை வைப்பாரு. और बच्चे सुधरने के लिए माता पिता के ऊपर हाथ रखेंगे. பெற்றோர்கள் திருந்துவதற்காக பிள்ளை மேல கை வைப்பாரு. माता पिता सुधरने के लिए बच्चे के ऊपर हाथ रखेंगे. இதெல்லாம் தேவனோடு அதிகமாய் உறவாடி கொண்டிருக்க அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ரகசியங்கள். ये सब जो है परमेश्वर के साथ अधिक साथ से मेल मिलाप करने वाले एक रहस्य बात है. ஆண்டவர் எப்படி கடிந்து கொள்வாரையா? तो परमेश्वर कैसा ताड़ना देंगे? அது நம்ம வாழ்க்கையில் அழிப்பதற்காக அல்ல. वो हमारे जीवन में नाश करने के लिए நஷ்டப்படுவதற்காக அல்ல. हमें नष्ट पहुंचाने के लिए नहीं. நம்ம வாழ்க்கையில हमारे जीवन में திருந்தி அவருடைய பிள்ளையா மாறணும். वो हम सुधर कर उसके बच्चे बनना है. ஆவிக்குரிய பிள்ளையா மாறணும். और आत्मिक बच्चे बनना है. और उनकी प्रजा बनना है. ஆண்டு சின்ன லைட்டர் தட்டுறாரு. इसलिए कई लोगों को ऐसे हल्का ठोकता है. हालेलुया 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 हालेलुया. हम அங்க போன சாப்பிட்டேன். मैं वहां पर गया खाया वैसे ही हो गया. ஸ்லிப் ஆயிட்டு वैसे स्लिप हो गया. வண்டி குறுக்க வந்துட்டு और गाड़ी आड़ा गया. இதெல்லாம் சாகை பக்க கிடையாது. ये सब कोई बहाना नहीं है. ஏனென்றால் क्यों कहेंगे तो கர்த்தர் நம்மை தாங்குறவர். परमेश्वर हमें थामने वाला பாதுகாக்கிறவர். वो हमें रक्षा करने वाला அவருக்கு தெரியும். वो सब हो जानता है. அது சில்பாக வைக்கிறது அவர்தான். वो फिसलने लगाने वाला भी वही है. गाड़ी மோத வைக்கிறது அவர்தான். और गाड़ी को ठोकने वाला भी वही है. அவர்தான். वो सभी कुछ वो जानता है. அது தெரியும். वो जानता है. தட்டி விடுறாரு. और वो ठोक कर छोड़ रहा है. தட்ட ஆண்ட தட்டி விடுறாரு. परमेश्वर मार कर छोड़ता है. நீ பார் திருந்துறியா? तू अभी तो सुधरेगा क्या? ஒழுங்கா ஜெபம் பண்ணுவியா? अभी तो ठीक तरह से प्रार्थना करेगा. பரிசுத்தமா ஜீவிப்பியா? अभी तो पवित्रता से जियोगे. जियोगे. देव सिद्धन जीविया. अभी तो परमेश्वर की इच्छा करेंगे. ऐसा परमेश्वर ठोक कर देखेगा. आप यदि नहीं सुनेंगे तो ही परमेश्वर आपको त्याग देगा. நீ முட்டி மோதிக்கிட்டு तभी ही कहा तो ठोक कर கோமாஸ்ல உட்கார்ந்துட்டு இருப்ப. और कोमा स्टेज में बैठे रहोगे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा. बिलाम சொல்லி பார்த்தார் ஆண்டவர். वैसे ही बिलाम को परमेश्वर ने कह के देखा. वो नहीं सुना. செவுத்தோட தேய்ச்சி விட்டார் பாரு. उसे दीवार में रखकर घस दिया. देखो वो தேய்ச்சி விட்டார் பாரு. वो घस दिया. देखो கால் உடைஞ்சிருக்கும். उसका पैर फूटा होगा. எலும்பு உடைஞ்சிருக்கும். हड्डी टूटा होगा. அது தேவையாது. ये क्या जरूरत है क्या? हालेलुया हालेलुया. கர்த்தர் கடிந்து சோர்ந்து போகாதே. परमेश्वर ताड़ना देते समय निराश मत होइए. சோர்ந்து போகல பாரு. वो दाऊद சோர்ந்து போகல. दाऊद निराश नहीं हुआ. देखो அந்த பிள்ளை அடிச்சிட்டாரு. वो बच्चे को मार दिए. दाऊद சோர்ந்து போகல. लेकिन दाऊद निराश नहीं हुआ. हालेलुया. தானை திடப்படுத்திக் கொண்டு वो अपने आप को दृढ़ कर தீர்க்க குறைய தெளிவா உணர்த்தினான் பாரு. वो भविष्य देता उसको एकदम स्पष्ट से उसकी गलती को बताया. திருந்தி वो सुधर कर அந்த ராஜ தாவீதை கொண்டு दाऊद के द्वारा செய்ய வேண்டிய வேலை நிறைய இருக்கு. करने वाले कार्य बहुत था. எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சாரு பாரு. वो सब परमेश्वर ने पूरा किया. इसलिए நாளை யோசித்து பாருங்க. इस दिन में सोच कर देखिए परमेश्वर சிட்சி எல்லாம் அற்பமா என்ன கூடாது. उसकी ताड़ना को कभी हम तुच्छ नहीं जानना है. और उसकी शिक्षा में कभी निराश नहीं होना है. யோபு தாவீது சொன்னா इसलिए दाऊद ने कहा நான் உபத்திரப்பட்டது நல்லது. मैं उपद्रव पाया वो अच्छा है. பிரமாணத்தை கற்றுக்கொண்டேன். उसके द्वारा उसके विधियों को सीख गया. दाऊद उपद्रवப்படலனாக்கா तो दाऊद जब उपद्रव नहीं हुआ तो वचनத்தை கற்றுக்கொண்டு கண்டிருக்க முடியுமா? तो वचन को नहीं सीखा होगा क्या? वचनத்தை படிச்சிருக்க முடியுமா? वचन को पढ़ा होगा क्या? वचनपடி வாழ முடியுமா? वचन के अनुसार जिया होगा क्या? திறந்து பார்க்க முடியுமா? और बाइबल खोलकर पढ़ा होगा क्या? காலை உடைச்சதனால தான் நீ பைபிள் படிக்கிற. आप पैर तोड़ा इसलिए आप बाइबल पढ़े हो.
யோசித்து பாருங்க. तो सोच कर देखिए, இப்படிப்பட்ட ஒரு சர்ச்சையில तो इस प्रकार के एक ताड़ना में எனக்கு தான் வருது, वो मेरे लिए आता है, எனக்கு தான் சோதனை, मेरे लिए परेशानी எனக்கு है, தான் பிரச்சனை, मेरे लिए எனக்கு தான் मुसीबत, போராட்டம், मेरे लिए लड़ाई है யாருக்குமே இல்ல, और किसी के लिए नहीं है। சொல்லவே சொல்லாத. ऐसा कहो ही मत। ஹalleluya, हालेलुया। ஹalleluya. ஏனென்றால் क्यों कहेंगे तो ஒவ்வொரு அடியும் हर एक मार जो நம்ம है அழிப்பதற்காக அல்ல, हमें नाश करने के लिए नहीं है, நம்ம சரிப்படுத்தணும். हमें ठीक करना है। அப்போ ஒரு அடி விழுதா, तभी एक मार मिलता है क्या? உட்கார்ந்து பார்க்கணும். बैठ कर देखना है। தாவீதுக்கு அடி விழுந்தது, दाऊद को मार मिला, உட்கார்ந்துட்டான். बैठ गया वो, எங்க நான் விட்டுட்டேன், कहाँ पर छोड़ दिया मैंने, பார்க்கறான், वो देखता है, பிரமாணத்தை மீறிட்டேன், वो उसकी आज्ञाओं को उल्लंघन कर दिया, வசனங்களை மீறிட்டேன், उनके वचनों को उल्लंघन हो गया வசந்தபடி வாழ ஆரம்பிச்சேன். और उनके वचनों के अनुसार जीने लगा। அது இயேசு சற்று சிந்தித்து பாருங்க. जरा सोच कर देखिए, நம்ம எத்தனை தட்டி இருக்காரு, कितने बार हमें ठोका है परमेश्वर, கண்டுக்கதே கிடையாது. वो हम अनजाने के समान रहते हैं। ஹalleluya, हालेलुया। சோதனை வந்துட்டு, ये आ गया, கொரோனா வந்துட்டு, कोरोना आ गया, எல்லாருக்கும் வந்துட்டு, அப்படி வந்துட்டு, सभी को आ गया, इसलिए मेरे लिए आ गया। நோ நோ, வாழ்க்கை ஜீவிதத்துல கர்த்தர் அனுமதி இருக்கிறார். ये जीवन में परमेश्वर ने अनुमति दिया है। சரிப்படுத்தணும். क्यों उसे ठीक करना है? எங்க இடறி இருக்க, कहाँ पर आप ठोकर खाए हो, சரியில்லாம இருக்க, कहाँ पर आप ठीक नहीं हो, அதை சரிப்படுத்ததான், उसे ठीक करने के लिए, அதை சரிப்படுத்ததான் அமைச்சிருக்காரு. उसे ठीक करने के लिए भेजा है। காய்ச்சல் எதுக்கு, ये बुखार क्यों है, தலைவலி எதுக்கு, ये सिर दर्द क्यों है, கால் வலி எதுக்கு, ये पैर दर्द क्यों है, இடுப்பு வலி எதுக்கு, ये कमर दर्द क्यों है, ஆண்டவர் தட்டுறாரு. ये क्यों परमेश्वर ठोक रहा है? எங்க தட்டினா சரி வரும், இடுப்பு தட்டுவாரு, कहाँ ठोकेंगे तो ठीक होगा, करके कमर को ठोकते हैं, कई लोग को सिर पर ठोकते हैं, கண்ணை தட்டுவாரு, कई लोग को नजर को ठोकते हैं, கையை தட்டுவாரு, कई लोग को हाथ को ठोकते हैं। ஏன் क्यों? நீ எங்க சரிப்படலாம், आप कहाँ पर ठीक होना கை है? சரி இருக்காதா, கை சாத்தா கையை தட்டுறாரு. आपका हाथ ठीक नहीं, इसलिए हाथ में ठोकते हैं। ஹalleluya, हालेलुया। ஹalleluya, हालेलुया। வாய் சரிக்கு வாய் தட்டுவாரு, कई लोग का मुंह ठीक नहीं, इसलिए मुंह को ठोकते हैं, மூக்கு சரியா இருக்கு மூக்கு தட்டுவாரு, और कई लोग को नाक ठीक नहीं, इसलिए नाक में मारते हैं, இடுப்பு தட்டுவாரு ஆண்டவர். कई लोग को कमर ठीक नहीं, इसलिए कमर में मारते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ஹalleluya, हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। அதான் கடிந்து கொள்ளும்போது நீ சோர்ந்து போகாத, इसीलिए उसके ताड़ना में आप निराश मत होइए, கடிந்து கொள்ளும்போது சோர்ந்து போகாத, उनके ताड़ने में आप निराश मत होइए। சோர்ந்து ஆண்டு வைக்கிறாரா, परमेश्वर निराश உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு बैठ कर देखकर எங்க என் பரிசுத்தம் போயிட்டு, कहाँ पर मेरा पवित्रता எங்க चला அழிவு गया, போயிட்டு, कहाँ मेरा बुलावट எங்க चला गया, தரிசனம் போயிட்டு, कहाँ मेरा दर्शन எங்க चला गया, தேவனை விட்டு விலகி இருக்கிறேன், कहाँ मैं परमेश्वर से எங்க दूर நான் हटा ஆண்டவரை हूँ, விட்டு விலகி இருக்கிறேன், कहाँ परमेश्वर से दूर எல்லாம் हटा हूँ, உட்கார்ந்து பார்க்கணும். ये सब बैठ कर देखना है। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த ஸ்கேன்ல எல்லாம் தெரியாது, இது சிடி ஸ்கேனு, सिटी स्कैन में नहीं मालूम, எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்லாம் இதெல்லாம் தெரியாது. एमआरआई में ये सब नहीं मालूम पड़ता है। ஹalleluya. हालेलुया। உட்கார்ந்து बैठकर வேத வசனம் வச்சுக்கிட்டு, शास्त्र को பைபிளை रखकर, வச்சுக்கிட்டு, बाइबल को रखकर உன்னை மனசு ஆராய்ந்து பார். अपने मन को जांच அப்ப कर எங்க देखिए, அங்க என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு, तो कहाँ कहाँ पर எங்க என்ன परेशान, பண்ணிருக்க, कहाँ पर मैंने क्या क्या அப்ப किया, நல்லா தெரியும் பாரு. ये सब आप அப்ப जानते हो, நாம் சரிப்படுத்திக்கணும், तब उसे ठीक करना அப்ப है, நாம் சீர்படுத்திக்கணும். तब उसे स्थिर करना है। ஹalleluya, हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। அது மனாசேன்னு சொல்லப்பட்ட ராஜா இருந்தான் பாரு, मनासे के नाम एक राजा था, அவனை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிச்சாரு, उसे परमेश्वर ने आशीर्वाद किया, அவன் இஷ்டம் போல வானாம் பாருங்க. वो अपने मन के अनुसार அப்ப जिया। ஆண்டவர் तब परमेश्वर ने இந்த எதிரி ராஜாக்கள் கர்த்தரை ஒப்பு கொடுத்துட்டாரு जो பாரு. विरोधी राजा के हाथ में उसे सौंप दिया परमेश्वर ने। ஹalleluya, हालेलुया। ஹalleluya. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। 2 நாளாகம புத்தகத்துல दूसरे इतिहास की किताब வாசிப்போமானா हम पढ़ते समय அங்க சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, वहां पर लिखा गया है, 2 நாளாகமம் दूसरे इतिहास की किताब 32ஆம் அதிகாரத்துல 32वां अध्याय में சோத்திரம் 9 இருந்து வாசிக்கும் போதோ 9 से हम पढ़ते समय அங்க சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, वहां पर लिखा गया இதன் பின்பு அசிரிய ராஜாவாகிய சனகரீப் है, इसके बाद असुर राजा जो தன் முழு सनगरीब சேனையுடன் अपनी पूरी सेना के साथ ராகுக்கு எதிராக முற்றுகை போட்டிருக்கையில், उसके सामने जब वो डेरा யூதாவின் डाला था, ராஜாவாகிய எசேக்கியாவினிடத்திற்கு எருசலேமில் யூத ஜனங்கள் யாவரிடத்திலும் ஊழியரை அனுப்பி, यरूशलेम में यहूदा के राजा इजकिया और उन सब यहूदियों से जो यरूशलेम में थे। ஹalleluya, हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। 33ஆம் அதிகாரத்துல 33वां अध्याय में சோத்திரம் 10, 11, 12 வாசிப்போமானால், उसका 10 और 11 12 ஆகையால் கர்த்தர் तब यहोवा ने அசிரிய ராஜாவின் சேனாதிபதி அவர் மேல் வரப்பண்ணினார், असुर के सेनाधिपतियों को चढ़ाई कराई, அவர்கள் மனேசை முச்செடியில் பிடித்து और ये मनसे के नकेल डालकर 2 வெண்கல சங்கிலியால் அவனை கட்டி और पीतल की बेड़ियों से கொண்டு जकड़कर போனார்கள். और उसे बेबीलोन को ले गए.
ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। அப்ப அசிரிய ராஜாவை தானிய தேவனே வர பண்ணினார் तो इस असुर राजा को जो है परमेश्वर ने ही ले आने के सहायक किया। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। அவ வர பண்ணி तो उसे ले आकर கர்த்தரை ஒப்பு கொடுக்கறார் பாருங்க परमेश्वर ही वहां पर अर्पण அவ करते வர हैं। பண்ணிட்டு तो आकर அவனை போயிட்டு பாபிலோன் கொண்டு போயிட்டு செங்கல் எல்லாம் போட்டு கட்டறா और उसे बेबीलोन ले जाकर उसे जंजीरों से அப்போ जकड़ता है। இப்ப அடுத்த வசனம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது अगला वचन कहा गया அவன் है நெருக்கப்படுகிற போது वो जब दबाए जाते அவன் समय ஒடுக்கப்படுகிற போது जब वो तोड़ा जाते அப்பதான் समय கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கறான் பாருங்க तभी वो परमेश्वर को அவனை देखता தன்னை है। தாழ்த்தி वो अपने आप को नम्र करता அப்பதான் தன்னை சரிப்படுத்துறான் है, பாருங்க तभी अपने आप को ठीक करता है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। அது வரைக்கும் சரிப்படுத்தல பாரு वो जब तक उसने अपने आप को ठीक அது नहीं किया போல उसी तरह சில அடி விழும் कई मार मिलेगा, சில சிச்சை வரும் कई टाड़ना आएगा, சில கடிந்து கொள்ளுதல் வரும் कई टाड़ना आएगा। ஹalleluya हालेलुया। அப்ப நம்ம சரிப்படுத்திக்கணும் பாரு तभी अपने आप को ठीक அப்ப करना இந்த है। மனசை சரிப்படுத்தின உடனே तो इस मनासे ने सीधा किया इसलिए மறுபடியும் கத்த கொண்டு வந்து வச்சாரு பாரு और फिर से ले आकर परमेश्वर அதே वहां पर தேசத்துல उसी देश அதே में ராஜ்யத்துல उसी राज्य அதே में பதவியில उसी पद அங்க கொண்டு पर வந்து வச்சாரு பாரு उसे ले आकर रख दिए। அப்ப உன்னை சரிப்படுத்தணும் तो उसे ठीक உன்னை करना है, சீர்படுத்தணும் तो अपने आप को स्थिर அப்ப करना ஆண்டவர் है। கடிந்து கொள்வார் तभी ही परमेश्वर हमें शिक्षा அப்ப देगा। ஏதாவது அடி விழும் तो कोई तो एक मार அப்ப அடி मिलेगा, விழும்போது அடி போடும் तो मार मिलते समय मार 2 लगेगा, தையல் வரும் 2 தையல் வரும் 2 टका आएगा, 5 தையல் வரும் 5 टका आएगा, சில விரல் எடுக்க வேண்டியதா இருக்கும் कई लोगों को उंगली निकालने का नौबत आएगा। हालेलुया। हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। சில ஒட்டு போடுறது வரும் कई लोगों को जोड़ने के समान होगा। இதெல்லாம் எதுக்கு ये सब क्यों உன்னை है? சரி பண்ண ये तुम्हें ठीक करने के लिए। ஆகினால इसलिए வாழ்க்கையில जीवन में கடிந்து கொள்ளுகிற போது जो टाड़ना देते समय சோர்ந்து போகாத आप निराश मत होइए, சோர்ந்து போகாத आप निराश मत சோர்ந்து होइए, போகாம आप निराश ना होते हुए கர்த்தருக்காக நீ வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பாய் परमेश्वर के लिए आप जिएंगे तो தேவன் எல்லாம் நன்மைக்கே செய்றாரு परमेश्वर सभी भलाई के लिए करते அன்பு हैं। குருகிற பிள்ளை எல்லாமே நன்மைக்கா நடக்கிறது और प्रेम करने वालों के सभी के लिए भलाई के दौर पर எல்லாமே होते हैं, நன்மைக்கு தான் सभी ही भलाई के ஆகையினால लिए। इसलिए சோதனை கடிந்து கொள்ளுகிற போது சோர்ந்து போகாத आपकी शिक्षा लेते समय आप निराश 9 मत होइए। மாதங்களா 9 महीने तक ஒருவேளை ஆண்டவர்கிட்ட அடி வாங்கி இருக்கலாம் हो सकता है परमेश्वर के पास परमेश्वर में मारे होंगे, तो क्यों? எங்கேயோ என் வாழ்க்கை தவறி இருக்கு कहाँ तो मेरा जीवन, எங்கேயோ என் ஜீவன் தவறி இருக்கு कहाँ तो मेरा जीवन चुक இதை गया है। உணர்ந்து इसे स्मरण करते हुए திருந்தி उसे ठीक कर कर சோர்ந்து போகாம இருந்தா आप निराश नहीं होंगे तो கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார் परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे। நல்ல ஆபத்து காலத்துல तो संकट के समय में சோர்ந்து போகாத आप निराश मत होइए, நற்கிரியை செய்வதிலே अच्छे काम में करने में சோர்ந்து போகாத आप निराश मत होइए, கர்த்தர் கடிந்து கொள்ளுகிற போது और परमेश्वर टाड़ना देते सोंदु समय होगा। आप निराश मत होइए। ஹalleluya हालेलुया। நாலாவது பார்ப்போமானா और चौथा हम देखते समय சோத்திரம் எபேசியர் புத்தகத்துல एबेसे की किताब पर எபேசியர் புத்தகம் एबेसे की किताब 3ஆம் அதிகாரத்துல 3रा अध्याय में எபேசியர் एबेसे किताब 3ஆம் அதிகாரம் 3रा अध्याय 13வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது 3रा अध्याय वचन சோத்திரம் 13ஆம் அதிகாரம் 13 वचन पढ़ते समय ஆகியால் உங்கள் நிமித்தம் நான் அனுபவிக்கிற உபத்திரவங்களினால் इसलिए मैं तुम्हारे कारण उठाने में நீங்கள் क्लेश சோர்ந்து के द्वारा போகாதிருக்க வேண்டிக் கொள்கிறேன் आप निराश ना होते मैं तुमसे विनती அவைகள் करता हूँ। எனக்கு அவைகள் உங்களுக்கு மகிமையா இருக்கிறது वो तुम्हारे लिए महिमा के दौर पर है। பரிசுத்த பவுல் சொல்றாரு पवित्र पौलुस कहता है உங்களை மட்டும் அனுபவிக்கிற आपके द्वारा सहन करने वाले உபத்திரவங்களிலே उपद्रव में நீங்க சோர்ந்து போகாதீங்க आप निराश मत அது होइए, உங்களுக்கு மகிமையா இருக்கு वो तुम्हारे लिए महिमा के दौर पर होगा। உபத்திரவத்துல சோர்ந்து போக तो கூடாது हमारे उपद्रव में हम निराश नहीं होना है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய கிருபை கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। அவன் உபத்திரம் வர மனுஷனுக்கு तो एक मनुष्य को क्लेश आएगा, ஆபத்து வேற संकट अलग है, கடிந்து கொள்ளுதல் வேற ताड़ना अलग है உபத்திரம் வேற और क्लेश अलग है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। எல்லாம் ஒண்ணு போல கிடையாது सभी एक समान नहीं है, உபத்திரம் வேற वो क्लेश अलग है। இஸ்ரவேல் மக்கள் உபத்திரப்படுத்தினார்கள் और इजराइल लोगों को क्लेश पहुंचाए, உபத்திரத்தை பார்த்து தான் கர்த்தர் இறங்கி அனுப்பினார் वो क्लेशों को देखे ही परमेश्वर वहां पर उतरे। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। இஸ்ரவேல் மக்கள் பட்ட உபத்திரங்கள் ஏராளம் ये इजराइल लोग उठाए हुए क्लेश बहुत अधिक है। உபத்திரத்தை பார்த்து தான் ஆண்டவர் மோசே அனுப்பினாரு इस क्लेशों को देखकर ही परमेश्वर ने मूसा को भेजे। அதே போல பரிசுத்த பவுல் பட்ட உபத்திரங்கள் ஏராளம் उसी तरह पवित्र पौलुस ने उठाए हुए क्लेश बहुत ही थे, அப்போஸ்தலர் பட்ட உபத்திரங்கள் ஏராளம் और प्रेरितों ने उठाए हुए क्लेश बहुत சிறைச்சாலை थे, போட்டு ஒடுக்கினார்கள் और बंदीगृह में डालकर उन्हें तोड़ा गया, சிறைச்சாலை अடைத்து और வைத்தார்கள் बंदीगृह में बंद कर करके நிர்வாணமாக்கினார்கள் उन्हें नंगा किए थे, உபத்திரம் பல உபத்திரம் और क्लेश कई प्रकार के क्लेश பரிசுத்த थे, பவுல் பல உபத்திரத்தை அனுபவித்தார் और पवित्र पौलुस ने कई प्रकार के ஆனா क्लेश को சோர்ந்தே अनुभव போகல பாரு किया। तो वो उसमें निराश ही नहीं हुआ। ஹalleluya हालेलुया। அப்ப யோசேப்பு பார்க்கலாம் यूसुफ को देख सकते हैं, உபத்திரத்தை அடியே போட்டு உபத்திர குழையில் போட்டு உடைக்கினார்கள் और क्लेशों के बंदीगृह में डाल के उसे உபத்திரம் சிறைச்சாலை போட்டு உடைக்கினார்கள் और बंदीगृह में डाल के उसे तोड़े थे, கைகளும் கால்களும் போட்டு உடைக்கினார்கள் उसके हाथ पैर बांध के उसे तोड़े थे। சோர்ந்தே போகல பாரு वो निराश ही नहीं हुआ। देखो ஹalleluya
ஹalleluya हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। பரிசுத்த பவுல் சொல்றாரு, पवित्र पौलुस कहते हैं ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் கடைசியில் வாசிப்பீர்களானா, रोमियो के 8 में अंतिम वचन நேரம் நான் पढ़ते हैं, வந்திக்கப்பட்டோம், निरंतर में நேரம் கொல்லப்பட்டோம், निरंतर मारा जाकर நேரம் நிந்திக்கப்பட்டோம், निरंतर निंदा போது होकर பசி வந்தாலும், कितना भूख பட்டினி आए तो भी, வந்தாலும், कितना भूख आए तो भी, நிர்வாணம் வந்தாலும், नंगापन आए तो எது भी, வந்தாலும், कुछ भी आए तो भी, ஆண்டவராகிய தேவன் விட்டு, प्रभु परमेश्वर அவருடைய के அன்பை விட்டு प्रेम से என்னை பிரிக்கவே முடியாது. मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया அப்போ அவர்கிட்ட பிரிக்க முடியாது. तो उससे कोई अलग नहीं कर सकता எத்தனை है। உபத்திரம் வரட்டும், कितना क्लेश எத்தனை आने பாடு दीजिए, வரட்டும், कितना बोझ आने அவன் दीजिए, சோர்ந்து போக மாட்டான். वो निराश ही नहीं होता है। ஜெபம் குறையாது, प्रार्थना कम नहीं होगा, விசுவாசம் குறையாது, विश्वास कम नहीं होगा, பரிசுத்தம் குறையாது, पवित्रता कम नहीं கர்த்தருக்காக होगा, பாடுபடல குறையவே குறையாது. परमेश्वर के लिए परिश्रम बढ़ाने जीवन कम नहीं होगा। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया அது யோபு தாவீது எத்தனை உபத்திரம் வந்தது, और दाऊद के लिए कितना क्लेश அவன் आया, துதி குறையல பாரு, उसकी स्तुति कम नहीं हुआ, வேத வாசிப்பு குறையல பாரு, उसकी सांस से पढ़ना அவன் कम नहीं हुआ, தேவசத்தில் குறையல பாரு. परमेश्वर की इच्छा में कम नहीं हुआ। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया அப்ப யோசித்து பாருங்க, तो सोच कर देखिए, ஒரு சவுல் எவ்வளவு விரட்டி விரட்டி அடிச்சான், और साउल ने कितना भगा भगा कर சவுல் मारा, விரட்டி விரட்டி எவ்வளவு துன்பப்படுத்தினான். साउल ने कितना भगा कर उसे दुख தாவீது पहुंचाया, சோர்ந்து போகலையே, दाऊद उसमें निराश नहीं தாவீது हुआ, சோர்ந்து போகலையே, दाऊद उसमें निराश नहीं हुआ, பரிசுத்த பவுல் சோர்ந்து போகவில்லையே. पवित्र पौलुस கர்த்தர் निराश नहीं எதற்காக हुआ। என்னை பிடித்தாரோ, परमेश्वर ने किस कारण से मुझे चुना எதற்காக है, என்னை அழைத்தாரோ, किस लिए मुझे அதை चुना நான் है, நிறைவேற்ற வேண்டும், उसे मैं पूरा करना அதை है, நான் தொடர்ந்து ஓட வேண்டும், उसे लगातार அதை दौड़ना நான் है, பற்றிக் கொள்ள வேண்டும். उसे मैं थाम लेना है। உபத்திரம் வரையா, ये क्लेश आएगा, ஆகையினால பரிசுத்த சீஷர்கள் पवित्र चेले लोग உபத்திரத்தை பார்த்து 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 வாழ்ந்துகிட்டு और இருக்காங்க. क्लेश को देख देख कर ही जीवन जी रहे हैं। அப்போதான் சோதரன் ஆண்டவராகிய தேவன் சீஷர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், तभी ही प्रभु परमेश्वर चेलों को देख कर कहते உபத்திரத்தின் हैं, வழியாக தான், इस क्लेश के द्वारा ही, உபத்திரத்தின் வழியாக தான் பரலோகம் போகணும். इस क्लेश के द्वारा ही स्वर्ग जा सकते ஆகையினால हो। பரலோகம் போக போற வழி इसलिए स्वर्ग जाने वाला मार्ग जो நல்ல है சிமெண்ட் போட்டு போட்டதல்ல, वो अच्छा सीमेंट का रोड नहीं है, தாரோடு போட்டதல்ல, अच्छा जो कांक्रीट का रोड नहीं நல்ல है, பஞ்சுமெத்தை போட்டதல்ல, अच्छा जो स्पंज நல்ல மேட் का போட்டதல்ல, अच्छा मैट डाला हुआ नहीं है। உபத்திரம் 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 उबत्र उबत्र क्लेश क्लेश है, உபத்திரம் உபத்திரம். क्लेश क्लेश है, எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் உபத்திரம் और தான். कहाँ भी फिरेंगे तो आपको क्लेश होगा பாடுகள் நிந்தைகள் தான். और बोझ और வழியா परेशान தான் होगा, போகணும். उस मार्ग में ही जाना है। ஹalleluya. हालेलुया। உபத்திரத்தை பார்த்து சோர்ந்து போகாத. इसलिए आप क्लेशों को देखकर அதான் निराश ஆண்டவர் मत சொன்னாரு, होइए। तभी परमेश्वर ने कहा, உலகத்துல உபத்திரம் உண்டு, इस संसार में क्लेश ஆனா है, சோர்ந்து போகாத, इसलिए आप निराश मत திடன் होइए, கொள்ளு, दृढ़ता திடன் बनिए, கொள். दृढ़ पालिए, நான் ஜெயித்தேன். मैंने विजय पाया। ஹalleluya. हालेलुया। ஆகினால इसलिए இதை நான் 10வது மாதத்திலே इस 10वें महीने மூணு में, அசுத்த முதல் பரிசுத்த நாளிலே इस पहले पवित्र இந்த दिनों में, 4வது நாளிலே इस चौथे दिनों நீ में சோர்ந்து போகாத, आप निराश मत होइए, சோர்ந்து போகாத. आप निराश मत होइए। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। எல்லாவற்றையும் சகித்த இயேசுவை நினைத்துக்கொள். सभी चीजों को सहन किया हुआ यीशु मसीह को याद ஆகினால कीजिए। इसलिए சோதர நல்ல கிரிசையில் சோர்ந்து போகாத, अच्छे काम करने में निराश मत होइए, ஆபத்து வருகிறப்போ சோர்ந்து और போகாத, संकट आते समय निराश मत होइए, கர்த்தர் கடிந்து கொள்ள சோர்ந்து போகாத, परमेश्वर की शिक्षा ताड़ना में निराश मत சோர்ந்து होइए, போகாத, और क्लेशों में निराश मत होइए, ஜெபத்தில் சோர்ந்து போகாத, और प्रार्थना में निराश मत होइए, சோதர நன்மை செய்ய சோர்ந்து போகாத. और भलाई करने में निराश मत होइए। தேவன் எழுதி வைத்திருக்கிறார். ये सब परमेश्वर लिख के रखे। இந்த நாட்களிலே इसलिए इस दिनों में நாம ஆராய்ந்து பார்த்து हम अपने आप को जांच நாலு कर காரியங்களை देखें। ஒப்பு கொடுப்போம். ये 4 कार्य के लिए अर्पण கர்த்தர் करेंगे। உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा। எல்லா முழங்கால் படிங்க. सब घुटना टेक कर, எல்லா சோதரப்படி எல்லாம் ஜெபம் பண்ணும். सब सुधे के प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவரே, சோதரம் 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 அல்ல தகப்பனே, உம்முடைய கிருபை பெரியது, இரக்கம் பெரியது, தயவு பெரியது. அல்லாண்டவரே, சோதரம் 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 அல்ல தகப்பனே, சோதரம் 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 அல்லாண்டவரே, சோதரம் 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 ஆவியானவரே, சோதரம் 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 அல்லாண்டவரே, சோதரம் ஆவியானவரே, நம்முடைய கிருபைகளுக்கா சோதரம் 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 நம்முடைய கிருபை 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 கிருபையா பைஷாலா மீனா நாமாதூரா ரபா ஷகா நீகாமா மீனா நாமாதூரா ரபா அல்லாண்டவரே, சோதரம் அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடோ இந்த லேசான உபத்திரவோ, அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடோ இந்த லேசான உபத்திரவோ. சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே.
அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம். அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம். உள்ளான மனித நாளுக்கு நான் புதிதாக்கப்படுகின்ற நேரம் இது. உள்ளான மனித நாளுக்கு நான் புதிதாக்கப்படுகின்ற நேரம் இது. சோர்ந்து போகாதே நீ, சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே நீ, சோர்ந்து போகாதே. அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம். அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம். நல்லாண்டவரே அல்லாண்டவரே சோதரம் 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 சோதரம். எல்லோரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे. स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो. अभी तक इस आराधना को आशीर्वाद करके दिया हुआ कृपा के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे. சோதரம் 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 சோதரம். அவர்கள் எல்லா இடங்கள் வசனங்களை தேடி आप सभी वचनों को ढूंढकर சோர்ந்து போவார்கள். वो निराश हो जाएंगे. சோதரம் சோர்ந்து போகிற நேரத்திலே निराश होते समय எல்லா விதமான சோதரம் பாடுகளை சகித்து அவரே நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். हमारे लिए सभी प्रकार के परिश्रम को सहन किया उसी को याद कीजिए. மாற்றுகிறவர், वो निराश को बदलने वाला प्रभु. इसलिए ஆபத்து வருகிற போது संकट आते समय சோர்ந்து போகாதே, निराश मत होइए. அவரை நினைத்துக்கொள். उसे याद कीजिए. நற்கிரியை செய்வதிலே अच्छे काम करने சோர்ந்து में போகாதே, आप निराश मत होइए. அவரை நினைத்துக்கொள். उसे याद कीजिए. கடிந்து கொள்ளுகிற போது और शिक्षा देते समय சோர்ந்து போகாதே, आप निराश मत அவரை होइए. நினைத்துக்கொள். उसे याद कीजिए. உபத்திரவத்திலே और क्लेशों में சோர்ந்து போகாதே, आप निराश मत அவரை होइए. நினைத்துக்கொள். उसे स्मरण कीजिए. பெரிய காரியம் செய்ய வல்லவராய். परमेश्वर बड़े काम करने के लिए शामत है. ஹல்லேலூயா हालेलुया. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे. स्तुति சோதரம் हो, स्तुति சோதரம் हो, சோர்ந்து स्तुति हो. போகாமல் இருக்க और निराश ना होने के लिए கிருபையும் பலனையும் தந்து परमेश्वर कृपा और बल देकर அவரை ஆசீர்வதிக்கும்படியா हर एक को परमेश्वर आशीर्वाद करने के लिए சோதரம் பண்ணுவோம். सभी परमेश्वर की स्तुति करेंगे. स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति பரிசுத்த हो. பிதாவே, पवित्र परमेश्वर நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். धन्यवाद की स्तुति करते ஆண்டவராகிய हैं. தேவன் தாமே प्रभु परमेश्वर ही மட்டுமாய் अभी तक இருந்த ஆராதனை பொறுப்பெடுத்து इस आराधना को जिम्मा लेकर தந்த மேலான கிருபைக்காக आपने ஸ்தோத்திரம். आशीर्वाद किया और कृपा के लिए स्तुति हो. ஆண்டவரே, हे प्रभु, நாங்கள் சொந்து போகாமல் இருக்க हम निराश ना होने के लिए கிருபை தந்து हमें कृपा देकर ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறேன். हर एक को आप आशीर्वाद करने के लिए विनती करते வார்த்தைகளுக்காக हैं. आपके सुने हुए वचनों के लिए ஜனங்கள் அங்கங்க தேடி और यहाँ वहाँ ढूंढकर அந்த சொந்து போவார்கள். वो निराश हो जाएंगे. ஆனால் लेकिन சோதரம் நீர் எல்லா பாடுகளையும் சகித்து आप सारे परिश्रम को सहन कर कर எல்லாவற்றையும் சகித்து ஜீவிக்கிற இருக்கிற தேவனா இருக்கிறபடியினால் आप सारे कार्य को सहन करके जीने वाले परमेश्वर हो. इसलिए நாங்கள் நினைத்து आप ही को हम स्मरण करते हुए ஆண்டவரே, சொந்து போகாமல் ஜீவிக்க हम निराश ना होते हुए जीवन जीने के लिए பண்ணும்படியா ஜெபிக்கிறேன். परमेश्वर अब अनुग्रह कीजिए. ஆண்டவரே, हे प्रभु, ஆபத்து வருகிற போது संकट के समय में சொந்து போகாமல் இருக்கணும். हम निराश नहीं होना है. அறிக்கைகள் செய்வதிலே अच्छे काम சொந்து करने में போகாமல் இருக்கணும். हम निराश नहीं होना है. நீர் கடிந்து கொள்ளுகிற போது आप टाड़ना देते சொந்து समय போகாமல் இருக்கணும். हम निराश नहीं होना है. உபத்திரங்கள் வருகிற போது और क्लेश आते சொந்து समय போகாமல் இருக்கணும். हम निराश नहीं होना है. ஜெபம் பண்ணுவதிலே प्रार्थना करने சொந்து में போகாமல் இருக்கணும். निराश नहीं होना है. ஆண்டவர் நன்மை செய்வதிலே परमेश्वर भलाई करने சொந்து में போகாமல் இருக்கணும். निराश नहीं होना है. இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே इस प्रकार के சொந்து जीवन में போகாமல் இருந்து निराश ना நீர் होते हुए வைத்திருக்கிற आप रखे हुए எம்மைக்குரிய ஆசீர்வாதத்தினாலும் अभी के आशीर्वाद மகிமைக்குரிய ஆசீர்வாதத்தினாலும் महिमा के आशीर्वाद ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் காணப்பட आशीर्वाद के दौर में दिखाने के लिए परमेश्वर अनुग्रह कीजिए. ஜனங்களுக்குள் எல்லா சோர்வுகள் மாறட்டும். लोगों की सारी निराश में बदल எல்லா दीजिए. பின்மாற்றங்கள் மாறட்டும். सारे पिछले हटे हुए जीवन को बदल பாவத்தில் दे வாழ்ந்து और सभी में जीकर ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் காணப்பட आशीर्वाद पाके हुए जीने கர்த்தர் के लिए உதவி செய்யும். परमेश्वर सहायता कीजिए. இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु के नाम से ஜெபிக்கிற நல்ல பிதா. प्रार्थना करते अच्छे पिता. ஆமென். आमीन. ஆமென். हे ஆத்துமாவே मेरे मन கர்த்தரை यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किए हुए किसी भी उपकारों को ना भूलना. ஆமென். ஆமென். ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தராகிய இயேசுவின் கிருபையும் हमारा प्रभु यीशु मसीह की कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का
का प्रेम பரிசுத்த ஆவியான ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का நம் संगति அனைவரோடு கூட हम हर एक के संग அடுத்த வருகை பரியந்தம் परमेश्वर के आगमन சதா तक காலங்களில் सदा काल तक நித்திய காலமாக अनंत अनंत काल तक நிலைத்திருப்பதாக बने रहे ஆமென் आमीन அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया சோதரம் சோதரம் சோதரம்